بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے حرف دعا اور اس کے رائٹر ہیں ریاض عاقب کولر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ اٹھتے ہو یا پانی کا جگ ڈیلنا پڑے گا؟ زو نے کمبل میرے اوپر سے کھینچ کر پڑے پھینکا۔ سونے دو نا یار۔ میں نے کروٹ بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ میرا خیال ہے یہ الفاظ تمہیں خالی خلی دھمکی لگ رہی ہیں، اس نے دوبارہ تنبیہ کی۔ میں جواب دیے بغیر دم سادے پڑا رہا۔ وہ اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے۔ پہلے مرحلے میں آدھا گلاس پانی، اور اس کے پانی پھینکنے سے پہلے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب چھٹی کے دن بھی نہیں سونے دو گی؟ آرام کا کوئی ٹائم ہوتا ہے محترم، 11 بجنے والے ہیں اور تمہاری نیند ہی پوری ہونے میں نہیں آ رہی۔ پتہ ہے میں رات کو کس ٹائم سویا تھا؟ میری بلا سے، اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو 11 بجے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اچھا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے۔ اب میں ویسے ہی اٹھ گیا تھا اور اس حالت میں اس سے دب کر بات کرنا مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ تیری تو؟ وہ پھرتی سے میز پر پڑے پانی کے جگ کی طرف جھپٹی اور میں چھلانگ لگا کر باتھ روم کی جانب بھاگ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کنڈی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہی ہے اور مجھے پتا تھا کہ میرے لیے ناشتہ لینے جا رہی ہے۔ ہم دونوں کزنز ہیں اور والدین کی اکلوتی اولاد بھی۔ عذرا، جسے ہمیشہ میں زو کہہ کر بلاتا ہوں، مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ مجھے تحفے میں مل گئی تھی۔ ماں کی گود سے زیادہ وہ میری گود میں پلی بڑھی۔ بچپن ہی سے ہم دونوں میں گاڑی چھننے لگی۔ ہم دونوں کا برتاؤ بالکل دوستوں والا تھا۔ جوان ہونے کے بعد بھی یہ رویہ نہیں بدلا۔ لڑکی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ ان کا جواب پتھر سے دینا اس کی فطرت ثانیہ تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال ماں بہن کی طرح رکھتی۔ میرے کپڑے استری کرنا، الماری میں ترتیب سے لٹکانا، بستر کی چادر بدلی کرنا، میرے لیے ناشتہ کھانا وغیرہ لے کر آنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ والدین کی طرف سے ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جوان ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میرے نزدیک وہ ایک دوست کی طرح تھی، ایک اچھا، مخلص اور قیمتی دوست جسے میں ہر بات منوا سکتا تھا۔ غصے میں آ کر اس کی پٹائی کر دیتا اور غلطی پر ہونے کی صورت میں اس کے تھپڑ اور گھون سے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا۔ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی اور نہ اس نے کبھی اپنے خیالات یا احساسات مجھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ والدین کا رویہ ایسا تھا کہ ہم دونوں دو ماں باپ رکھتے تھے۔ میں کبھی ابو جان اور چچا جان کی محبت میں تمیز نہیں کر سکا اور نہ امی جان اور چچی جان کی شفقت میں کسی ایک کو زیادہ نمبر دے سکا۔ یہی حال زو کا تھا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے میری منتظر نظر آئی۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے انڈے سے الرجی ہے۔ میں نے پلیٹ میں پڑے ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر ناک بو چڑھائی، جن کا چھلکا نفاست سے اتارا گیا تھا۔ جانتی ہوں محترم، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن موسم بدل رہا ہے اور سردیوں کی آمد کے ساتھ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو انڈے کھانے پڑتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ٹھونسنے پڑیں گے۔ پر یہ 3 انڈے، تم تو روزانہ 1 انڈا لیتی ہو نا؟ پھر ہاں، آج بھی میں 1 ہی لوں گی۔ 2 تمہارے لیے ہیں، میں نے نہیں کھانے 2 انڈے، خود کھا لینا۔ میں نے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، گو میں جانتا تھا کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو ہر صورت مجھے منا کر چھوڑے گی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ شاید اس سے ناشتہ کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اپنے حصے کا انڈا اٹھا کر اس نے میری پلیٹ کی جانب کھسکا دیا۔ یار زو، کیا بکواس ہے! میں نے پرزور احتجاج کیا۔ میرا نام عذرا مختار ہے۔ جب اس نے میری بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تھا تو وہ یہی انداز اختیار کرتی کہ کسی اعتراض نہ کرنے والی بات پر اعتراض جڑ دیتی۔ اگر میں نہ کھاؤں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ میں نے ملک شیک کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر کے پوچھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ نہیں، پھر بھی مطلب اگر میں صرف 1 کھاؤں؟ 1 کھاؤ یا بالکل نہ کھاؤ، سزا ایک ہی ملے گی۔ ذرا میں بھی سنوں۔ کل انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، وہ سیب چھیلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ اوہ شٹ یار، مجھے تو بھولا ہوا تھا۔ میں جلدی انڈے ٹھونسنے لگا کیونکہ اس کی دھمکی نہایت واضح تھی کہ اس نے مجھے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھنے دینا۔ گو وہ خود بھی میرے وجہ سے کرکٹ میچ دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب ضد پر آ جاتی تو مجھے ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دیتی تھی، اور اس کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا جب اس نے آئس کریم کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کا موقف تھا کہ مارکیٹ سے آئس کریم لے کر ہم گھر بیٹھ کر کھا لیں گے اور اس کی خریداری میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہ لگتے۔
मगर मुझे टीवी के सामने से उठना गवारा ना हुआ। नतीजतन मैं वो मैच ना देख सका और अब मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे सिर्फ क्रिकेट के मैच की धमकी नहीं देती थी, इस ज़मन में उसके तरकश में कई तीर थे। मेरी किसी कीमती चीज़ का बेड़ा करना हो, मुझे सोने ना देना, भूख हड़ताल वगैरह कर लेना, वगैरह वगैरह। अलबत्ता मेरी बात पर वो ज़्यादातर बेचून शरह अमल करती। कभी नहीं करने का इत्तेफाक हो भी जाता तो गधे की तरह मुझसे पिट जाती थी। नाश्ता करके वो बर्तन समेटने लगी। घर में नौकरानी मौजूद होने के बावजूद मेरे काम अपने हाथों से करना पसंद करती थी। वो बर्तन रख कर लौटी तो मैं अभी तक इत्मीनान से बैठा हुआ था। अब चलो भी राजू, पहले ही इतने लेट हो चुके हैं। यार जो कुछ खुदा का खौफ करो, मुझे शॉपिंग से इतनी चिढ़ होती है कि जी चाहता है कहीं भाग जाऊँ। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते बाद शादी है, कम से कम 3 सूट खरीदने हैं मैंने, जूते और मेकअप का सामान भी लेना है। फिर तुम्हारे लिए मजबूरन मुझे ही खरीदारी करनी पड़ेगी कि जनाब का इंतखाब घटियापन की आला मिसाल होता है और यकीनन ये काम 2-3 घंटों में तो नहीं निपटाया जा सकता। मैं सर पकड़ते हुए बोला, कुछ खुदा का खौफ करो जो। खुदा का खौफ ही तो कर रही हूँ, वरना तुझे 8 बजे ही मार्केट ना ले जाती। अच्छा मेरी माँ, अब चलो, मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो शरारत से बोली, वैसे आज मूड नहीं है तो ये काम कल पर भी टाला जा सकता है। पिटोगी मुझसे जो। मैंने दांत पीसे और वो खिलखिलाकर हंसी। वो अच्छी तरह जानती थी कि क्रिकेट मैच मेरी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। हम दोपहर ढले ही वापस लौट सके थे। अपने लिए शॉपिंग के साथ उसने मेरे लिए भी शॉपिंग की थी। यूँ भी मेरे लिए कपड़ों, जूतों, परफ्यूम, कमरे की सजावट का सामान, यहाँ तक कि मोबाइल और लैपटॉप तक वो अपनी पसंद से खरीदती। मैंने ज़िंदगी में एक मरतबा स्पोर्ट्स शर्ट्स खरीदने की गलती की थी और सिर्फ एक दिन ही पहन सका। इसके बाद वो कहाँ गायब हुई मुझे आज तक पता नहीं चल सका। अलबत्ता उसका रंग कितना बोंगा था, लंबाई चौड़ाई कितनी बेढंगी थी, इस पर होने वाला तबसरा हर खरीदारी के मौके पर दोहराया जाता था। मैं मास्टर कर रहा था जबकि जो सेकेंड ईयर में थी। कॉलेज में वो मेरे साथ ही जाती। अलबत्ता वापसी पर उसे ड्राइवर लेने जाता क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेट आना होता था। वापसी पर वो कॉलेज का लिबास बदल कर मेरी ख्वाबगाह की सफाई अपनी निगरानी में करवाती और फिर वहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करती। मेरी वापसी पर हम दोनों थोड़ी देर गपशप करते, इकट्ठे दोपहर का खाना खाते और इसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती। उस दिन भी वो कमरे की सफाई के बाद मेरे बिस्तर पर लेटी एक रिसाले की वर्कदारी कर रही थी जब मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर छाए खुशी के असरात उसे निहाल कर गए। मुझे खुश देख कर न जाने क्यों वो भी खिल उठी। जो पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी से चहका। वो तो तुम्हारे थोबड़े से भी दिख रहा है, वजह पूटो। उसका नाम रक्षंदा है, मुझसे 1 साल जूनियर है और बहुत प्यारी है। जो के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात नमूदार हुए, मगर अगले लम्हे खुद पर काबू पाते हुए उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया, मोहतरम, यह गालबन 8वीं है या फिर 9वीं, लेकिन इस मरतबा एकदम अचानक, मतलब पहले जिक्र नहीं किया। अचानक कहाँ जो, महीने भर से उसके दाएं बाएं फिर रहा हूँ। मतलब पहले मुझसे ये बात छुपाई रखी, क्यों? वो क्या है कि अगर वो ना मानती तो तुमने मेरा मजाक उड़ाना था। मैंने सोचा पहले उसे मना लूँ, इसके बाद तुम्हें भी बता दूंगा। मनाना लूँ, पटा लूँ कहो। उसने ज़बान निकाल कर मुझे चिढ़ाया। वैसे अगर वो ना मानती फिर तो क्या, तुम्हें फिर भी बता देता। बस मैं जानती हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मुझे दोस्त समझते हो तो पहले दिन ही बता देते ये बात। जो सॉरी ना यार, अच्छा आइंदा पहले से बता दिया करूँगा। उसने कहकहा लगाया, मतलब ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी कहीं मुंह मारने का इरादा है? नहीं यार, मेरा मतलब है अभी रक्षी से होने वाली सारी बातों से तुम्हें आगाह रखूँगा। वो तो खैर रखोगे, जैसे समीना, रानी, पिंकी, किरण, संबल, अकदस, रजिया के बारे में मुझे आगाह रखते थे। हाँ, और सच में जो इस मरतबा मैं संजीदा हूँ। अच्छा मजाक है। वो हंसी। वैसे ख़ानदानी बैकग्राउंड कैसा है? एसपी की बेटी है? वाह, इसका मतलब है तूने ज़रा भी गड़बड़ की तो हवालात की सैर करनी पड़ेगी। रक्षी के लिए सब कबूल है। मैंने उसका तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लीं। क्या खूब, बहुत खूबसूरत है। उसके लहजे में हसद या रश्क जैसा कोई जज्बा ज़रूर पोशीदा था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी कि दूसरी औरत के हुस्न की तारीफ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जो सुर्ख सेब के से रुखसार, मोटी मोटी गुलाबी आंखें, गुलाबी होंठ, सुराईदार गर्दन, सरू का, यकीन करो अप्सरा है, अप्सरा। आज तक मैंने उस जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। मतलब पहले वाली तमाम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बेशक, तो फिर कब मिला रहे हो? जब कहो। ऐसा है कि कल मैं छुट्टी के बाद इधर यूनिवर्सिटी में ही आ जाऊंगी। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा तुम चेंज करो, मैं खाना लाती हूँ। वो किचन की तरफ भर गई और मैं सर हिलाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। अच्छा पता है आरज़ू तुम्हें देखने आई है। ये कौन ज़ात शरीफ है? रुखसंदा
मुस्तफसिर हुए। हम दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। मेरी दोस्त है और फिर उसकी आंखों में झलकने वाली हैरत देखकर मैंने वजाहत की, मेरा मतलब कज़न है मेरी। आपकी कज़न का मेरे साथ क्या काम? वो बचपन से मेरे हर काम में दखील रही है। अब शादी ऐसे काम में उसके मशवरे के बिना तो नहीं कर सकता। क्या मतलब? अगर मैं उसे पसंद ना आई तो आप मुझे छोड़ देंगे? रक्षी के लहजे में हैरत के साथ गुस्से का आंसर भी शामिल था। ओहो, ये मैंने कब कहा? वो मेरी राजदार ज़रूर है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि उसकी वजह से हमारी मोहब्बत में कोई रखना पड़ सकता है। दिखाना शुरू करो एफिशिएंसी, देख लो जदी कहीं ये ना हो वो कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंसी दिखा दे। नहीं जी, वो ऐसी नहीं है, मैं जल्दी से बोला। अच्छा देख लेंगे, अब चलो पीरियड शुरू होने वाला है। वो उठ गई और मैं सर हिलाता हुआ काउंटर की तरफ भर गया। आखिरी पीरियड शुरू होने से पहले मुझे जो का SMS मसूल हुआ। वो यूनिवर्सिटी गेस्ट पर पहुंच चुकी है। ओके, ड्राइवर को वापस भेज दो और वो यूनिवर्सिटी कैंटीन में आ जाओ। जो अभी SMS लिख कर मैं रक्षी को कॉल करने लगा। यस, उसने कॉल अटेंड करने में देर नहीं लगाई। जो कैंटीन में हमारी मुंतजिर है, क्या आखिरी पीरियड अटेंड न करूँ? हाँ रक्षी, वो इतनी दूर से तो सिर्फ तुम्हें मिलने आई है। ओके, मैं पहुंच गई, कहकर उसने कॉल मुनक़ता कर दी। मेरे कदम भी कैंटीन की तरफ उठ गए। इस वक्त कैंटीन में रश ना होने के बराबर था। जो ने निस्बतन खाली गोशे में जगह संभाली हुई थी। वो इस वक्त कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। मैं उसके सामने कुर्सी संभाल कर बैठ गया। कहाँ है जी हमारी भाभी? बस आने ही वाली है। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसे मेरे बारे में बता दिया था? वो अजीब से लहजे में मुस्तफसर से हुई। हाँ जो, अभी वो तुम्हें मिलने ही आ रही है। अल्फाज मेरे होंठों पर से एक रक्षिंदा कैंटीन में दाखिल हुई। यही है? उसके अंदर जाहिल होते ही जो ने आहिस्ता से पूछा। सही पहचाना, कहते हुए मैं उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जो ने भी मेरी तकलीद की थी। अस्सलाम वालेकुम। रक्षी ने इस्लाम करते हुए अपना हाथ मुसाफे के लिए जो की तरफ बढ़ा दिया। वालेकुम अस्सलाम, आए भाभी बैठे। जो शोफी से बोली। जो क्या लोगी? गर्म या ठंडा? राजू जी, कैंटीन की फीकी और बेमज़ा चाय बटर खाने की ज़रूरत नहीं। और तुम्हें पता है घर से बाहर मैं किस होटल में खाना पीना पसंद करती हूँ। तुम्हें मैंने नहीं बुलाया था, समझी? मैंने आंखें निकाली। बुलाने को छोड़ो, मेरी आमद का मकसद से देखो। आखिर मैंने ही जाकर अम्मी जान और अब्बू जान को राज़ी करना है। मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। खाम खा मेरा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं। बनूंगी क्या? तुम मुझे रोक सकते हो? उसने आंखें निकाली। इस टाइम उसे ये भूल गया कि हमारे साथ कोई तीसरा भी मौजूद है। शट अप जो, मैंने उसे डांट कर खामोश करवाना चाहा। यू शट अप, बाहर में जाओ तुम भी। और इसने रक्षी की तरफ देखा और मज़ीद कुछ कहे बगैर उठकर कैंटीन से बाहर जाने लगी। ए जो, सुनो तो। मैंने उसे आवाज़ दी मगर वो सुनी अनसुनी करती बाहर चली गई। सॉरी रक्षी, मगर मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। मैं रक्षी का जवाब सुने बगैर तेज़ कदमों से चलता हुआ कैंटीन से बाहर निकल आया। जो का रुख यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे की तरफ था। मैं जानता था उसे वहीं मनाने की कोशिश कामयाब होने वाली नहीं। वो किसी भी सूरत वापस आने पर राज़ी न होती। अगर मैं बिल्कुल उसे नज़रअंदाज कर देता और उसके पीछे ना जाता तब तो शायद वो कई दिन खफगी में ही गुजार देती। मैं पार्किंग की तरफ बढ़ा। जब तक मैं कार पार्किंग से बाहर निकालता वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई थी। जल्दी ही मैंने उसे जा लिया। कार उसे चंद गज आगे रोक कर मैं नीचे उतरा। ये क्या बोहिदगी है जो? मैं इस वक्त सचमुच तैश में था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बेपरवाही से कहते हुए उसने मेरे करीब से गुजरना चाहा। मैंने हाथ पकड़कर उसे रोका। आखिर ऐसा क्या कह दिया है मैंने कि तुमसे खफा हो गई? एक गैर लड़की के सामने मुझे शटअप कहना तुम्हारे नज़दीक कोई बात ही नहीं। जाने दो, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अच्छा, कार में बैठकर बात करते हैं। मैंने उसे बाजू से पकड़कर कार की सिमत खींचा। खिलाफ तवक्का बगैर किसी एतराज़ के वो कार में बैठ गई। जो, बात समझने की कोशिश करो। वो कोई गैर नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। और तुमने भी तो जवाबन मुझे शटअप कहा दिया था। फिर खफा होकर वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं जवाब भी न देती। उसने आंखें निकाली। बात समझने की कोशिश करो यार। मेरे कहने का मतलब है जब तुमने बदला ले लिया था फिर क्यों उठाई? जाने क्या सोच रही होगी रक्षी। मैंने उसका आखिरी पीरियड भी मिस करा दिया। बड़ी तकलीफ़ हो रही है उसकी ज़रा सी जहमत पर। और मैं जो इतनी दूर से चल कर आई हूँ वो तुम्हारे नज़दीक कोई मायने नहीं रखता। वो बनाते हुए बोली। यूँ भी पहले नहीं है कि उसकी खफगी से तुम्हें कोई फ़र्क पड़े। अच्छा ये देखो, मैंने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। कोई पीर फकीर है तो उसका वास्ता, मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ हाँ, वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। अच्छा अब चलो भी, या यहीं रात गुजारने का इरादा है? वापस चलें? जी नहीं। उसे नफ़ी में साहिल आया। यहाँ से सीधा मैकडोनल्ड और फिर वहाँ से माँ अब्दुल्लत को मार्केट ले जाना। कोई चीज़ खरीदनी है? क्या मतलब कोई चीज़ खरीदनी है? मैं बौखला गया था। कपड़ों का एक सूट लेना है ना यार। उस दिन तो 3 सूट लिए थे, उनमें से एक ताई जान ने अपने लिए रख लिया। अब एक और ख़रीदना पड़ेगा। तो कौन सा तुम्हारी शादी हो रही है कि 2 सूटों से गुजारा नहीं हो सकता? तुमने चलना है कि नहीं? वो दोबारा संजीदा होगी और मैंने सर झुकाते हुए
कार आगे बढ़ा दी कि उससे बहस करना पत्थर से सर टकराने का मतरादिफ था। खाना हम बाहर खा कर आए थे, इसलिए वो मेरे कमरे में रखने की बजाय अपने कमरे की तरफ भर गई और मैं मोबाइल निकाल कर रक्षंदा को कॉल करने लगा, मगर उसने नंबर बिजी कर दिया। गोया वो सख्त खफा थी। मैंने 2-3 बार उसका मोबाइल नंबर ट्राई किया, मगर वो बार बार बिजी करती रही। तंग आकर मैंने कोशिश करना ही तर्क कर दिया। रात को मैंने ये बात ज़ो को बताई। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? उसने हैरानगी जाहिर की। वाह, क्या खूब इरशाद फरमाया है। जब तुम कैंटीन से निकल कर भागी थी तो वो क्या था बीबी? वो इत्मीनान से बोली। वो तो तुमने मेरी तौहीन की थी। भागने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ज़ोर, कुछ शर्म करो यार, मैं रक्षी को अकेला छोड़कर तेरे पीछे भागता रहा। वो तुर्की बतुर्की बोली। तो क्या मैं कभी तेरे पीछे नहीं भागी? कभी तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं किए? हाँ ये तो है, मगर फिर भी यार तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि रक्षी के साथ मैंने ज्यादती की है। अच्छा, कल जाकर मना लेना राजू। अब इस मौजू को छोड़ो। जो होना था वो हो चुका। और यूँ भी जब तुम किसी लड़के के बारे में संजीदा हो जाओगे तो तुमसे दूर नहीं जा सकेगी। बेअक्ल, नालायक और बेकार तुम सिर्फ मेरे लिए हो। लड़कियाँ तुम्हें ऐसा नहीं समझती। यूँ भी दूर के डोल सुहाने होते हैं, अलबत्ता करीब आने के बाद उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बेअक्ल और नालायक होगी तुम। और कौन सी लड़की मुझे छोड़ के गई है? ज़रा नाम तो बताओ। मुझसे बार बार उनके नाम तो मत गिनवाओ। तलावत नहीं है कि मैं हर मिनट बाद वो फहरिस्त दोहराना शुरू कर दूँ। तमाम से मैंने खुद ही कता ताल्लुक़ किया है और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोली। ज़रा मैं भी तो सुनूँ कि तूने किस किस को दुस्तकारा है। तो शुरू करते हैं समीना से। हाँ तो करो ना। उसकी और तुम्हारी बर्थडे एक दिन आ रही थी और उसकी दावत देने के बावजूद मैं वहाँ न जा सका। वो हंसी और अगले दिन उसने कहा कि आइंदा मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बस मुझे देखकर वो कतरा कर निकल गई और मैं भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। अपने नहीं, किरण के रास्ते पर कहो। और जिसे तुम कतरा कर निकल जाना कह रही हो ना, उसकी तशरीह में यही कहा जा सकता है कि मैं तेरी मनहूस शक्ल यहाँ नहीं देखना चाहती। मैं जोर से बोला। किरण को तो मैंने खुद कहा था कि अब तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। वो हंसी। ये भी बताओ ना कि कहा कब था? मैंने ज़ोरों शोर से कहा। जब भी कहा हो। कहा तो मैंने ही था। अच्छा मैं बता देती हूँ। इतवार के दिन तूने उससे वादा किया था कि उसे लंच कराओगे। वो होटल में तेरा इंतज़ार करती रही और तुम? हाँ, मैं अपनी मनहूस कज़न को हॉस्पिटल फिराता रहा। उसे फूड पॉइजन हो गया था, जो हर खाना आखिरी खाना समझ के खाती है। मैं भुनाते हुए बोला। बात तो पूरी होने दो। उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। अगले दिन वो किसी और लड़के के हाथ में हाथ डाले चहलकदमी कर रही थी। ऐसी सूरत में मोहतरम इसके अलावा क्या कर सकता था कि वो पिंकी के झूले में जा गिरे। और याद है तूने पिंकी के साथ कितनी कस्में खाई थी कि मेरे साथ तेरा कोई अफेयर नहीं, मैं बस तुम्हारी अच्छी दोस्त और कज़न हूँ। मगर वो ना मानी और उसने तुझे सख्ती से मना किया कि मुझसे दूर रहो। मगर माँ बदौलत को इतनी आसानी से किसी काम से नहीं रोका जा सकता। तो क्या हुआ? पिंकी ने भी तुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। और बस करो मेरी माँ। मैंने हाथ कानों को लगाकर हाथ जोड़ लिए। मेरी सारी महबूबाओं को मुझसे दूर करने वाली तुम हो कमीनी। लेकिन अब रक्षी को मैं नाराज़ नहीं होने दूंगी। अच्छा, नहीं होने दूंगा। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन यकीन करो मैंने जानबूझकर ऐसा कभी नहीं किया। उसके लहजे में शामिल नदामत गोया इस बात की दलील थी कि उसे रक्षी के साथ होने वाली ज़्यादती का एहसास हो गया था और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो हर दरम किसी तौर पर अपनी गलती मान गई है। रक्षी, बात तो सुनो। जब वो लाताल्लुकी से मेरे पास से गुजरती चली गई तो मजबूरन मुझे पुकारना पड़ा। जी? पीछे मुड़कर उसने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। आई एम रियली सॉरी जदीर साहब, मैं इतनी घटिया और फालतू नहीं हूँ, ना तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि यूँ मेरी तौहीन करोगी और मैं माफ़ कर दूँगी? रक्षी, मेरा नाम रक्षंदा है, अंडरस्टैंड? ओके मिस रक्षंदा अजहर साहिबा, मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो ना। फरमाओ। वहाँ कैंटीन में बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। सॉरी, लेकिन ये हकीकत ये है कि कैंटीन पर नुमान मेरा मुंतज़िर है और उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। क्या? मैं गमो गुस्से से चीख पड़ा। होश में तो हो? हाँ, और अब तुम भी होश में आ जाओ। नुमान मुझे तुमसे पहले भी प्रपोज कर चुका है और मेरी तुम्हारी तरफ माइल होने की वजह के बावजूद उसके दिल में मेरी चाहत कम नहीं हुई, जबकि तुम्हारे दिल में कभी मेरी चाहत थी ही नहीं। नहीं, ये झूठ है, मैंने पुरजोर अंदाज में तायद की। झूठ कैसे? क्या एक 3rd क्लास लड़की को मनाने के लिए तुमने मुझे कैंटीन में बुलाकर मेरा तमाशा नहीं बनाया? शट अप। 3rd क्लास होगी तुम खुद, मिलके तेरी पूरी फैमिली। खबरदार, आइंदा अगर मेरी कज़न के बारे में इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए तो ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। बाहर में जाए तेरी मोहब्बत और ख़ुद तुम। ज़ो के बारे में उसके रिमार्क सुनकर मेरा दिमाग एकदम घूम गया और फिर उसका जवाब सुनने के लिए
मैं वहाँ रुका नहीं था। ओए राहगीर, मेरा करीबी दोस्त मजहर हमेशा मुझे जदीर की बजाय राहगीर कहता था। उस वक्त वो यूनिवर्सिटी के लॉन में गड़ी संगी बेंच पर बैठा मुझे हाथ के इशारे से अपनी जानिब बुला रहा था, जबकि मेरा रुख उस वक्त पार्किंग एरिया की तरफ था, क्योंकि मैं जानता था कि उसने मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगना। मजहर को देखते ही मेरे कदम उसकी जानिब उठे कि उस वक्त किसी ऐसे मुखलिफ दोस्त की ज़रूरत थी जो मुझे शिद्दत से महसूस हो रही थी। किधर भागे जा रहे हो यार, तुम्हें तो रक्षंदा भाभी को मनाने जाना था। हूँ, रक्षंदा भाभी, मैं तंजी अंदाज में कहते हुए उसके साथ बैठ गया। मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। उसने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा और मुझे खामोश पाकर दोबारा बोला, क्या मेरा अंदाज़ा ठीक है? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कुछ ऐसा ही है, मैं उससे ताल्लुक़ तोड़ आया हूँ। गुस्से में लगते हुए उसने मुझे समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा चलो, पहले कुछ ठंडा हो जाए, फिर मुझे तफसील बतलाना क्या हुआ। पता नहीं खुद को समझती क्या है। कहा ना, अभी नहीं। उसने मेरा बाजू पकड़ कर कैंटीन की सिमत खींचा और मैं उसके साथ चल पड़ा। जानते हो, प्यार मोहब्बत के खेल में कई ऐसे मराहिल आते हैं कि महबूब से कतई तल्लुक़ करने को जी चाहता है, मगर एक आर्जी कैफियत होती है जिससे मोहब्बत होती है। गिले शिकवे भी उसी से होते हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। कैंटीन में जाकर उसने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। मैंने एक ही सांस में पूरी बोतल ख़त्म कर दी। ठंडे मशरूब ने मेरी अंदर उबलती तपिश को कम किया और मैं कुछ बेहतर सोचने के काबिल हुआ। अब बताओ क्या बात हुई? मजहर अपना कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके मुस्तफसिर हुआ। बस क्या बताऊँ यार, बड़ी मुश्किल से रक्षी को अपना बनाया था और बड़ी आसानी से गवा दिया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, थोड़ी वजाहत करने से यकीनन तुम्हारे दांत घिस नहीं जाएंगी। और मैंने पूरी तफसील उसके सामने दोहरा दी। वो इत्मीनान से बोला, इसमें सरासर तुम्हारी गलती है। मेरी गलती कैसे होगी? मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। तुम्हारी कज़न ज़रूरी थी या महबूबा? कज़न से तुम घर में भी निबट सकते थे। इस वक्त ज़रूरत थी कि तुम रक्षी को तसल्ली देते। यूँ भी तुम्हारी सारी महबूबाएँ इसी लड़की की वजह से बरगश्ता हुई हैं। यार, रक्षी के साथ तो मेरी लड़ाई ही नहीं हुई थी। मैं और जोही आपस में झगड़ रहे थे और फिर वो खफा होकर चल दी। मजबूरन मुझे उसके पीछे जाना पड़ा। यकीन करो, अगर मैं उस वक्त ये ना करता तो बाद में उसने हफ्ता भर तो मुझसे बात नहीं करनी थी। नाराज़गी की हालत में वो खाना पीना भी छोड़ देती है। और तो छोड़ दे, पहले तुम्हारी बीवी है, इसके बाद कोई और। मगर वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है। तुम्हें क्या पता वो किस तरह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। उसकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे मैं तुम्हारे नुक्ता नज़र से मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन चलो मान लेते हैं तुम उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागे। उसे मना लिया। अब रक्षी को जो गुस्सा आया हुआ था उसका तदारक कौन करता? तो मन्नतें तो कर रहा हूँ। वो खुद ताल्लुक़ नहीं रखना चाह रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत, बिल्कुल गलत। जब उसने गुस्से की हालत में तुम्हारी कज़न को थर्ड क्लास कह ही दिया था तो तुम्हें इस बात पर इतना सिखपा होने की क्या ज़रूरत है? तुम जानते नहीं हो एक औरत दूसरी औरत से कितना ज़्यादा हसद महसूस करती है। अगर नज़रा तुम्हारी कज़न की बजाय सगी बहन होती तो शायद रक्षी को इतना गुस्सा ना आता। और माफ़ करना, तुम्हारी कज़न ने हर वक्त तुम्हारे काम में रोड़े ही अटकाए हैं। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उसने ज़ो को बुरा भला कहा। इससे पहले वो नुमान और अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू कर चुकी थी कि गुस्सा करना मेरी मजबूरी बन गया। जब उसे मुझसे ज़्यादा नुमान की मोहब्बत चाहिए थी तो बाहर में जाए। हो सकता है नुमान का जिक्र उसने तुम्हें जलाने के लिए किया हो। ये अल्फाज मजहर के होंठों पर थे कि रक्षंदा नुमान के साथ कैंटीन में दाखिल हुई। मेरा रुख ताल दरवाजे की तरफ ही था। खुद ही देख लो। मैंने उसे दरवाजे की तरफ मतवज्जा किया। क्या देख लूँ? मजहर ने मुंह बनाया। घंटा भर पहले उसने तुम्हें कहा कि नुमान कैंटीन पर उसका मुंतज़िर है और वो अब उसके साथ कैंटीन में दाखिल हो रही है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? यही ना कि उस वक्त उसने झूठ कहा था। अगर नुमान उसका मुंतज़िर होता वो तो दोनों वो हमसे पहले यहाँ मौजूद थे। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, चलो अभी तो अपने कहे को सच कर दिया। मजहर ने इंकशाफ किया। अभी भी मुझे ड्रामा लगता है। बहरहाल अब मेरे लिए यही हकीकत है। मैं बेपरवाही से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। मजहर मुस्कुराया। क्यों, बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं यार, मैं साफ गोई से बोला। मेरा ख्याल है हम इतना आगे नहीं बढ़े थे कि अब लौटना नामुमकिन लगे। नामुमकिन ना सही, मुश्किल तो है ना। मैं मुस्कुराया। मुश्किलें तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना यार। और यूँ भी मैं पहली बार इस मरहले से नहीं गुजर रहा। ये कहते ही मैं आगे बढ़ गया। मजहर ने उठने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मैं जानता था कि वो रुखशंदा की टो में लगा रहेगा। वो मेरा मुखलिस दोस्त था और कभी भी मुझे रंजीदा नहीं देख सकता था। अरे वाह, आज तो जल्दी पहुंच गई। यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। ज़ो को अपने कमरे में देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी तक उसकी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ था। मेरे सर में दर्द था, इसलिए पहले पीरियड के बाद वापस आ गई। अब कैसी तबीयत है? सरसरी लहजे में पूछते हुए मैं बेड पर बैठकर जूतों के तस्मे खोलने लगा। डिस्प्रिन लेकर घंटा भर आराम किया। अब बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शुक्र है। और मेरे लिए भी फटाफट अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। चप्पल पहनकर मैं बाथरूम का
रुख करते हुए बोला, अभी तो खाने का वक्त है, बाद में पी लेना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा। वो सरस से बोली, बात सुनो। मैंने रुक कर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैंने आज मछली बनाई है। मछली हम दोनों की पसंदीदा खुराक है। तुम खा लो, मैं बस एक कप चाय का लूँगा। कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। मैं जब बाहर आया तो चाय का कप ला चुकी थी। मैं जानता था मेरे बगैर उसने भी खाना नहीं खाना, मगर मैं जानबूझकर खाने का जिक्र किए बिना ही चाय पीने लगा। वो खामोश बैठी मुझे घूरती रही। चाय पीकर मैंने खाली कप तपाई पर रखा और बिस्तर पर लेट गया। जो मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। अरे ए राजू, क्या हुआ? वो मेरे साथ बेड पर बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। कुछ नहीं, मुख्तसर जवाब देकर मैंने आंखें मूंद ली। क्या वो खफा हो गई है? नहीं, उसने कतई ताल्लुक़ कर लिया है। मेरी वजह से, है ना? जो की आवाज़ में कई अंदेशे लरस रहे थे। नहीं, मैंने उसे मतऊन करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि हम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी तमाम नाकाम मोहब्बतों की बड़ी वजह जो ही थी, बल्कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। तो पहले उसे पता नहीं था? शायद ना हो, मगर मेरे रवैये ने उसे उसकी जानिब माइल कर दिया। क्या वो बहुत खूबसूरत है? ये तो रक्षी को पता होगा कि वो इसे कितना अच्छा लगता है। अगर मैं रक्षी से बात कर लूँ, बल्कि उसे सॉरी कर लूँ। छोड़ो जो, तुम जाओ, जाकर आराम करो। चली जाती हूँ, वो इत्मीनान से बोली, मगर उसकी उंगलियाँ इसी तरह मेरे बालों में सरसराती रहीं और फिर मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। अगले दिन मैं ब्रेक टाइम पर कैंटीन में दाखिल हुआ तो जो को रक्षी के साथ बैठे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं सरस से उसकी मेज़ की तरफ बढ़ा, जाने वो रक्षी को क्या पट्टी पढ़ाने आ गई थी। गो उसने मुझे कहा था कि वो रक्षी को सॉरी कहने आएगी, मगर उससे कुछ बैद नहीं था कि वो उसे राज़ी करते करते फिर लड़ाई शुरू कर देती। कभी कभी मैं सोचता कि इसे अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दखील नहीं होने देना चाहिए था, मगर फिर उसकी मोहब्बत, खुलूस और खिदमत की सोच कर मुझे मलामत होने लगती। जो तुम यहाँ करीब जाने पर भी जब वो मेरी तरफ मतवज्जा न हुई तो मुझे खुद कहना पड़ा, राजू तुम बैठो ना, मैं रुखशंदा को सॉरी कहने आई थी। दरअसल उस दिन तुमसे झगड़ते हुए मैं इनके नाजुक जज्बात का ख्याल न रख सकी। रक्षी ने कहा, कोई बात नहीं अजरा, मैं खफा नहीं हूँ, बस वक्ती तौर पर गुस्से में आ गई थी। वो मेरी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। मैंने कहा, गालबन चाय मंगवाना तुम्हें भूल गया है तो मंगवा दो। जो ने आंखें निकाली, तुमने इसी चाय पर ही टरहाना है, ये देख रही हो? मैंने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए कहा, चाय भी पी लो और मैकडोनल्ड जाकर भी जहर मार कर लेना। हाँ हाँ हाँ, उसने ज़ोरदार कहा लगाया। मोहतरम एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सके और घुटने टेक दिए। कहा था ना, पंगा नहीं लेना। भाभी मेरी कोई बात नहीं टालती। क्यों रक्षी भाभी? उसने अचानक रक्षंदा से पूछा और वो सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। बस इतनी सी बात थी। अब जरा जल्दी से रक्षी भाभी को सॉरी कहो। गज़ब खुदा का, अगर मैं तुमसे झगड़ कर चलती थी तो तुम क्यों मेरे पीछे भाग पड़े? अब तुम्हें अखलाकियात भी मैं सिखाऊंगी। मैं इस वक्त उसकी बातों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। इतनी आसानी से रक्षी से सुलह हो रही थी। मैं जल्दी से बोला, सॉरी रक्षी, रियली मुझसे गलती हो गई, लेकिन यकीन मानो ऐसा अनजाने में हुआ। यूँ भी जो के साथ लड़ाई झगड़ा तो रोज़ का मामूल है। फिर सो के जदीर, वो शर्माते हुए बोली, मुझे भी बस खामखा गुस्सा आ गया था, हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। चले जी, ये मसला तो हल हुआ, अब मैकडोनल्ड्स चलते हैं। जो ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए तजवीज़ पेश की, मगर जाने क्यों मुझे उसकी हंसी में मसनूईपन झलकता नजर आया। ओके मुहतरमा, लेकिन क्या रक्षी अपने बाकी पीरियड्स की कुर्बानी दे पाएगी? रक्षी मुस्कुराई, अगर अजरा की यही ख्वाहिश है तो यकीनन मेरा जवाब नफ़ी में नहीं होगा। भाभी जिंदाबाद। जो ने आस्ता से नारा लगाया और रक्षी के चेहरे पर कोसो कज़ा के रंग झिलमिलाने लगे। जल्द ही मैं और रक्षी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। उसके बिना मुझे अपनी ज़िंदगी वीरान लगने लगी। यही हाल उसका भी था। कई दफ़ा वो मेरे लिए अपने पसंदीदा पीरियड भी मिस कर देती। हम जब तक इकट्ठे रहते हमारी नज़रें और ज़ुबान में फेक गुफ्तगू रहती और निगाहों से ओझल होते ही मोबाइल फ़ोन पर पैगामात का सिलसिला शुरू हो जाता। मैं जो कभी पहले की तरह वक्त नहीं दे पा रहा था, लेकिन जो ऐसी लड़की थी कि अपने लिए ज़बरदस्ती वक्त निकलवा लेती। और फिर इसी असना में एक दिन मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। मेरी सालगिरह करीब थी। गो मैं कभी भी इस गैर इस्लामी और गैर ज़रूरी त्यौहार के हक़ में नहीं हूँ, मगर जो अम्मी जान और चाची जान के सामने मेरी एक नहीं चलती। इस मरतबा भी जो 10-15 दिन पहले ही से सालगिरह की तैयारियों में मशगूल हो गई। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर पहुंचा तो जो मेरे कमरे में मौजूद नहीं थी। जो कहाँ मर गई हो? ख्वाबगाह खाली देखते ही मैं चिल्लाया। मुझे सख्त भूख लगी थी। अजरा बेटी तो कहीं गई हुई है बेटा, मम्मी जान पुरशफ़क़त लहजे में बोलते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। क्या खाना ले आऊँ? कहाँ गई है? कुछ की खरीदारी करनी थी। कॉलेज से आते ही ड्राइवर को साथ लेकर मार्केट भागी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सालगिरह आने वाली है और इन दिनों वो इसी की तैयारियों में मसरूफ़ है। ठीक है अम्मी जान, लेकिन मुझे सख्त भूख लग रही है। वही तो पूछा था कि खाना ले आऊँ। वो शफ़क़त से मुस्कुराई। मैं मुस्तफसर हुआ। जो ने खा लिया है? बताया तो है, कॉलेज से आते ही ख़रीदारी करने भाग गई है। अच्छा ठीक है अम्मी जान,
اسے واپس آنے دیں، جب تک میں فریش ہو جاتا ہوں ہم اکٹھے ہی کھا لیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، لیکن 2-3 منٹ میرے لیے بھی نکالو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم امی جان۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا اب عذرا بیٹی اور تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ابو اور چچا کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری سالگرہ پر تم دونوں کی منگنی کی تقریب اکٹھی منعقد کی جائے۔ منگنی ماں جی؟ ہم دونوں کی؟ مگر کس سے؟ امی جان نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پاگل نہ ہو تو، آپس میں بیٹا، اور کس سے؟ ہم دونوں۔ مگر امی جان، میرے چہرے پر باڑا بجنے لگے۔ اچھا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے جناب کی۔ امی جان نے مجھے بات مکمل کرنے نہیں دی اور پھر وہ آہستہ سے میرا کان مروڑتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئی۔ مگر مجھے سوچو کہ جس گرداب کے حوالے کر گئی وہ اس سے بے خبر تھی۔ میں نے کبھی زو کے متعلق اس انداز میں سوچا نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رکشی کا اشکوں بڑا چہرہ لہرانے لگا۔ زو کی واپسی تک میں اسی طرح سوچے میں ڈوبا رہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم تک بھی نہیں جا سکا۔ راجو دیکھو نا، میں تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ خریدا ہے۔ زو خوشی سے چمکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہوگی۔ اے راجو، خیر تو ہے نا؟ بوتھا کیوں بلا رکھا ہے؟ وہ ایسے ہی تھی، میرے موڈ کا اندازہ لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے مری مری آواز میں کہا، زو ہم بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ یا اللہ خیر۔ اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے شاپر کارپٹ پر پھینکے اور میرے ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ہونٹ چباتا ہوا اس کے شاپنگ کیے ہوئے سامان کو گھورتا رہا۔ اب کچھ پھوٹو گے کہ یوں ہی ٹینشن میں مبتلا رکھو گے؟ چند سیکنڈ سے زیادہ صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ماں جی بتا رہی تھی کہ اس دفعہ میری سالگرہ اور ہماری منگنی کی تقریب اکٹھی سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ہماری منگنی مطلب؟ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا، مطلب واضح ہے زو، تمہاری اور میری منگنی۔ اس کے چہرے پر ہویدہ پریشانی کے آثار معدوم ہوئے اور اس نے گہرا سانس لے کر پوچھا تو؟ میں جھلا کر بولا، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، مگر یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ شاید تمہارے لیے نہ ہو کہ تم کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر اذیت بھرے اثرات ظاہر ہوئے اور وہ صحیح کہا کہتے ہوئے شاپنگ والا سامان اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ سامان الماری میں رکھ کر وہ باہر چل دی۔ زو کہاں چل دی؟ میرے لہجے میں حیرانگی تھی۔ یار حد ہوتی ہے بے پرواہی کی بھی۔ وہ واپس مڑی۔ کیسی بے پرواہی؟ یہ بے پرواہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے محترمہ؟ میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں رکشی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ ہی نہ رہوں۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تسلی دلاسا تو دے ہی سکتی ہو نا، کیا فائدہ؟ اچھا فائدہ نقصان کو چھوڑو، میرا ایک کام کرو۔ میرے لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ جی؟ اس کی سوالیہ نظریں میری جانب اٹھی۔ ایسا کرو، تم امی جان کو جا کر بتا دو کہ تم مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا کیا کیا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خود پھوٹو نہ جا کر، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ دیکھو زو، امی جان تمہیں بہت چاہتی ہیں اور ناممکن ہے کہ وہ تمہاری کوئی بات ٹال جائیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، اور تم سے نفرت کرتی ہیں نا وہ، ہے نا؟ اگر یہ کہہ دیا تو سچ مچ نفرت کرنے لگیں گی۔ تو تم میری امی جان کے پاس جا کر انکار کر دو، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے منہ بنایا، بات تو ایک ہی ہے نا۔ دیکھو راجو، اس معاملے میں میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ ریلی سوری۔ زو میری طرف دیکھو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد اگی آنکھیں میری جانب گھمائی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ وہاں کہیں دور گہرائی میں پانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن ہے۔ شاید اس کے لیے بھی ہماری منگنی کی خبر دھچکے کا باعث بنی، مگر عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ زو پلیز میری خاطر، آخر تم خود کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ تم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہو اور پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی تمام کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس لیے اس نے قطع کلامی کی، اور تم چاہتے ہو کہ وہ ہمدردیاں میرے ساتھ باقی نہ رہیں۔ مجھے اچانک غصہ آیا اور میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم نے کہنا ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب چل دی۔ اس مرتبہ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رکی، پیچھے مڑے بغیر وہ کچھ دیر رکی رہی، پھر اچانک اس کی گلوگیر آواز میرے کانوں میں پڑی، ٹھیک ہے راجو، میں چچی جان کو کہہ دوں گی۔ اتنا کہنے کر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا وہ میری ماں کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد نے اسے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خفا کرنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شکریہ زو، میں خوشی سے چہکا، مگر وہ میرا جواب سننے کے لیے رکی نہیں۔ ساری پریشانی زو کے حوالے کر کے میں بے فکر ہو گیا۔ شام کے وقت جب میں کرکٹ کھیل کے اسٹیڈیم سے لوٹا تو چچا جان کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے چچی جان کی بلند آواز میرے کانوں میں پڑی، دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا، منع کیا تھا نا
कि बस मैट्रिक तक पढ़ा लिया बहुत है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में। वो शायद चचा जान से मुखातिब थी। यकीनन जो ने मेरी बात छेड़ दी थी। जवाबन चचा जान ने जाने क्या कहा कि एक बार फिर चची जान की बुलंद बांग आवाज़ मेरी समातों में गूंजी। राजू ऐसा बच्चा नहीं है, तेरी लाडली के नखरे ही ख़त्म होने में नहीं आते। बिला वजह शादी से इनकार करके जो तख्ता मश्क बनने वाली थी, मगर इतना खुदगर्ज मैं भी नहीं था कि उसे अकेला छोड़ देता। उसका साथ देना इसलिए भी ज़रूरी था कि तमाम के तानों और कोसनों से तंग आकर वो अपनी आमादगी भी जाहिर कर सकती थी, और इस शादी से पहलू तो ही मेरी ज़रूरत थी, ना कि उसकी। मेरे कदम चची जान के कमरे की तरफ भर गए। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। आओ आओ बेटा। चची जान की पुरशक्पत आवाज़ सुनकर मैं अंदर दाखिल हो गया। जो डबल बेड के साथ पड़ी लकड़ी की मुनकश कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। चचा जान बेड पर सरहाने से टेक लगाए लेटे थे, जबकि चची जान लाल बहू का कमरे के वस्त में खड़ी थी। चची जान, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है, बल्कि हकीकत तो ये है कि इस वक्त जो भी घर में मौजूद है उसने सुनी होगी। बेटा, इसने बकवास ही ऐसी की है कि तुम सुनोगे तो शायद सारी ज़िंदगी इससे बात भी नहीं करो। कहा ना, मैंने सुन ली है चची जान, और मैं इसके हक़ में हूँ। शादी ऐसा बंधन है कि किसी एक फरीक के ना चाहते इनसे कायम नहीं किया जा सकता। ज़बरदस्ती की शादी ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर दिया करती है, और मैं ज़ोर से बिल्कुल खफा नहीं हूँ, और आपको भी यही अर्ज़ करता हूँ। हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं कि ज़रा सी बात पर इसमें दरारें पड़ जाएँ, और यकीनन अभी आप देखेंगे कि मैं ज़ो का ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखूँगा। आप बिल्कुल टेंशन न लें। मगर बेटा, चची जान के चेहरे पर नजर आने वाली परेशानी मसनूई नहीं थी। मैं जानता था कि वो ज़ो से ज़्यादा मुझे चाहती हैं। इसी तरह अम्मी जान मुझसे ज़्यादा ज़ो पर जान देती थी। कोई अगर मगर नहीं। मैंने चची जान के गले में बाहें डालकर उनका माथा चूम लिया। वो मुझे अम्मी जान की तरह ही प्यारी थी। उन्हें यूँ धोखा देने पर मेरा दिल भी अंदर से खफा था, मगर क्या करता कि रक्षी मेरी कमज़ोरी थी। ज़ो ने कनखियों से मेरी जानिब देखा, और मैंने एक आंख मीच कर दांत निकाल दिए। वो दोबारा नीचे देखने लगी। बच्चे ठीक कह रहे हैं जी, चचा जान ने मेरी तायद करते हुए कहा। भाईजान से मैं खुद बात कर लूँगा। और अज़रा बिटिया ने इनकार तो नहीं किया ना? वो बस फ़िलहाल इस मंगनी का मौखर करना चाहती है, हो सकता है बाद में राज़ी हो जाए। सारे घर वालों ने इस लाडली की तायद ही करनी है। कहते हुए चची जान बाहर निकल गई। ज़ो, अगर फारिग हो तो चलो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चची जान के कमरे से निकलते ही चचा जान तपाई पर पड़ी किताब उठाकर मताले में मसरूफ़ हो गई। मौका गनीमत जानते हुए मैंने ज़ो को रफू चक्कर होने का इशारा किया। जी मेहरबानी, मैंने होमवर्क करना है। वो कहर आलूद निगाह मुझ पर डालते हुए कमरे से निकल गई। आखिर को सारा किया धरा मेरा ही था, और इतना गुस्सा करना उसका हक बनता था। रात के खाने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आई। मजबूरन मुझे उसके कमरे में जाना पड़ा। उसकी ख्वाबगाह की दीवारें मेरी तस्वीर से मुज़य्यन थी। कहीं मैं क्रिकेट ट्रॉफी पकड़े हुए था, तो कहीं इनाम वसूल कर रहा था। इसी तरह मेरे बचपन की वो तस्वीर जिनमें मैं अम्मी जान या चची जान की गोद में लेटा हुआ था, कई तस्वीरों में हम इकट्ठे नजर आ रहे थे। उनमें मेरे और उसके वालिदैन की तस्वीर भी शामिल थी, मगर ज़्यादा तादाद मेरी तस्वीर की थी। बचपन से लेकर आज तक साल ब साल मेरी हर सालगिरह की 22 तस्वीर भी एक लाइन में लगी हुई थी। इसके बरक्स मेरे कमरे में उसकी सिर्फ 2 तस्वीरें लगी हुई थी। एक तस्वीर उसके बचपन की थी जब मैंने उसे गोद में उठाया हुआ था, और दूसरी तस्वीर तकरीरी मुकाबले में फ़र्स्ट पोजीशन की ट्रॉली वसूल करते खींची गई थी। देखो जी, आज माँ बदौलत खुद ही कनीज़ के लिए कॉफ़ी बना कर लाए हैं। कॉफ़ी के कप तपाई पर रखते हुए मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला। राजू, खुशामद की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? और अभी मैंने सोना है। आप बराए मेहरबानी ये कॉफ़ी वापस ले जाएं। ज़ो, क्या है यार? चची जान ने कौन सी गोली मार दी है तुम्हें जो मूड इतना ख़राब हो गया? वो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही हैं, और क्या गोली लगने की तकलीफ़ इससे ज़्यादा होती है? तो मैंने तुम्हारी तरफदारी की तो थी, इसके अलावा भी मैं कर भी कह सकता हूँ। यूँ भी चंद दिन तक ये बात आई गई हो जाएगी। तुमने मेरी नहीं, अपनी तरफदारी की थी, और ये तुम्हारी भूल है कि ये बात आई गई हो जाएगी। ये ताना मुझे सारी उम्र सुनना पड़ेगा। तुम्हें तो सब मासूम समझेंगे। मतलब अब मुझे इस बात के ताने मिलेंगे कि तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है ना? उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए मुझे संजीदा होना पड़ा। वो एकदम संभलते हुए बोली, ऐसा मैंने कब कहा? तुम हर बात का उल्ट मतलब लेते हो, तो इस बात का क्या मतलब बनता है? वजाहत करना पसंद करोगी? ओके सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी। मेरा मूड देखते ही उसने एकदम सॉरी कहना शुरू कर दिया। चूँकि गलती मेरी अपनी थी, इसलिए मैंने फिलफोर सुलह कर ली। ये लो कॉफ़ी पियो। मैंने काफ़ी का मग उसकी जानिब बढ़ाया। वो मग थामते हुए बोली, राजू, अम्मी जान सच में बहुत ज़्यादा खफा हैं। माँ कभी नाराज़ नहीं हुआ करती पगली। ये फ़लसफ़ा अपने पास रखो। उसने मुँह बनाया। अच्छा, 2 माह सब्र करो, इसके बाद ये झगड़ा ही नहीं रहेगा। भला वो कैसे? बताना ज़रूरी है? नहीं, वो इत्मीनान से बोली, बल्कि बहुत ज़रूरी है। देखो, इम्तहान के बाद मैं अम्मी से बात करूँगा कि वो रिश्ता लेकर रक्षी के घर चली जाए, और मेरी शादी के बाद। मैंने चुटकी बताते हुए कहा। टाइम फिश, वो आहिस्ता से बोली।
صحیح کہا। اچھا मुझे नींद आई है, शायद तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं, बहुत खुश हूँ, कहकर उसने कंबल अपने ऊपर ले लिया। खैर, इतनी जल्दी तुझे सोने तो नहीं दूंगा। मैंने कंबल उसके ऊपर से खींच कर नीचे कालीन पर फेंक दिया। राजू क्या है यार, वो रोमांसी होने लगी। वो मुझे सचमुच सख्त अपसेट लग रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने उसकी नाक पकड़कर मरोड़ी। बताया तो है मुझे नींद आ रही है। अच्छा सो जाओ। मैंने कंबल उठाकर दोबारा उस पर फेंका और बाहर जाने लगा। मुझे यकीन था कि वो मुझे आवाज़ देकर रोक लेगी, मगर वो खामोश रही। मैंने दरवाजे के करीब रुकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो कंबल में रूपोश हो चुकी थी। एकदम मुझे गुस्सा आ गया। उसने सख्त बेहूदगी का मुजाहरा किया था। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। यकीनन वो मेरी मौजूदगी से भी वाकिफ़ थी। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा उससे घूरता रहा और फिर सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आया। सुबह की नमाज के बाद वो मेरे लिए खुद नाश्ता लाया करती थी। हद तो ये है कि हम दोनों में अगर कोई नाराज़गी होती तब भी उसके इस मामूल में कोई फ़र्क नहीं आता था। उस दिन भी हस्ब मामूल वो मखसूस वक्त पर नाश्ते की ट्रे उठाए मेरे पास पहुंच गई। उसके सलाम का जवाब देकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगा। रात वाली बात ना चाहते हुए भी मेरी सोचों में सरगर्दा थी। खिलाफ तवक्का वो भी खामोश से थी। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। बर्तन समेटते हुए उसने आहिस्ता से पूछा, कोई और चीज़ चाहिए? मैंने नफ़ी में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। वो भी मज़ीद कुछ बोले बगैर बाहर निकल गई। कॉलेज से वापसी पर दिन का खाना उसने मेरे साथ ही खाया, लेकिन बातचीत से गुरेज किया। अपने मामूल के मुताबिक रात को डिनर के बाद वो दोबारा मेरे कमरे में आई और खामोशी से बेड के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उससे बात किए बिना कमल में हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, शायद तुम सोने लगी हो? जी, मैं मुख्तसरन बोला। ओके, आराम करो। वो उठ कर जाने लगी। उसका रवैया इस बात का गमास था कि उसने अपनी माँ की खफगी को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। जो बात सुनो। वो मुश्किल दरवाजे तक पहुँच पाई थी कि मैंने उसे आवाज़ दी। जी। वो रुक कर पीछे मुड़ी। इधर आओ। मैं तकिए से टेक लगा कर बैठ गया। वो दोबारा कुर्सी पर आन बैठी। खफा हो? नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाकर दीवार पर लगी तस्वीर को घूरने लगी। मैं उसे समझाने लगा, यार माएँ भी कभी औलाद से खफा रही हैं। आज नहीं तो 2 दिन बाद देख लेना उनका मूड बहाल हो जाएगा। उसने अपनी मोटी मोटी शहदागी आंखें मेरी जानिब घुमाई, जिनमें हज़ारों लाखों शिकवे झलक रहे थे। राजू, छोड़ो इस मौजू को, कोई और बात करो। जब तक तेरा मूड ठीक नहीं होता मैं कैसे कोई और बात कर सकता हूँ? ठीक ही तो है। क्या हुआ मेरे मूड को? जो मैं मानता हूँ कि ये मेरा काम है, मगर तुम जानती हो कि रक्षी की मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तुमने हमेशा मेरे लिए कुर्बानी दी है, एक एहसान और सही। अगर इसके बाद भी तुम्हारे जहन में कोई अंदेशा है तो चलो, सुबह सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगा। अब खुश? राजू, नदीम हमीद लिखता है। अब समझ आए हैं असबाब जुदाई के। मुझे बात कुछ और थी, मैं और समझ बैठा था। इसी शेर में अगर मैं थोड़ा रद्द बदल कर लूँ कि कब समझ पाओगे असबाब मेरी वहशत के। बात कुछ और है और तुम और समझ बैठे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरे लहजे में हैरानी थी। हर बात समझाई नहीं जा सकती। बहरहाल मैं खफा नहीं हूँ और तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है एतराफ़ जुर्म की। अच्छा, मेरी सालगिरह की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? उसका जहन बटाने की खातिर मैंने मौजू बदलना मुनासिब समझा। मुकम्मल है, बस मेहमानों की लिस्ट रहती है, वो इकट्ठे बैठकर तैयार करेंगे। पिछले साल वाली लिस्ट में रक्षी का नाम का इजाफा कर दो और बस। मैंने इत्मीनान से कहा। वो हंसी। और रज़िया का नाम निकाल दूँ, है ना? नहीं, रहने दो। यूँ भी उसने कौन सा आ जाना है। पहले तो पुरानी वाली का नाम मदूली अफराद की लिस्ट से निकाल दिया करते थे। इस वक्त वो कोई और बात थी। बल्कि तुम ऐसा करो, पहले वाली तमाम का नाम इस फहरिस्त में शामिल कर दो, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मेरी होने वाली दुल्हन कैसी है। पता क्या चलना है, उन्होंने आना ही नहीं। अच्छा, मेरे लिए कोई ढंग का लिबास खरीदा है या पहले की तरह झक्की मारती रही हो? राजू साहब, अगर तुम्हें लिबास की पहचान होती तो मुझे मार्केट में ख्वार होने की ज़रूरत न पड़ती। याद है ना, एक मरतबा तूने शर्ट खरीदी थी। ये हाथ देख रही हो? मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए उसके सामने बांध दिए। अब खुदा रहा उस शर्ट को बख्श दो। वो कारीगर भी शायद इस जहान फ़ानी से कूच कर गया होगा, मगर उसकी सिलाई की हुई शर्ट की नहोसत अब तक मेरे गले का हार बनी हुई है। वो शर्ट जिसके पहनने की तौफीक मेरे नसीब में नहीं थी। वो खिलखिलाकर हंस दी। ही की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या क्या खरीदा। वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। क्रीम कलर का सूट, उसी रंग की जुराबे, काले शूज़। वो एक एक चीज़ मुझे दिखाने लगी। यार, औरतों को जो मैचिंग की बीमारी होती है ना। मैंने कानों को हाथ लगाए। बस अल्लाह ही माफ़ करे। उसने आंखें निकाली। ज़्यादा नखरों की ज़रूरत नहीं समझे। बड़ी आई उसे दिखाने वाली। मैंने उसे चिढ़ाया। तो दिखाओ। तो दिखाऊंगी ना। गुस्सा। वो सचमुच तप गई थी। दिखा लो, बस चंद माह की बात है। जब मेरी रक्षी आ जाएगी फिर देखूंगा कैसे रोब जमाती हो। देख लूँगी उसे भी। अगर उसने तुम्हारी पिटाई शुरू कर दी तो मैंने तुम्हें नहीं छुड़ाना, समझी ना? उसकी मिजाज कि वो मुझे हाथ भी लगाए। अच्छा यार, ये सामान वापस रखो अलमारी में। वो गुस्से में बढ़ाते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गई। कल मेरी सालगिरह की पार्टी है, तूने ज़रूर आना है। हम इस वक्त कैफेटेरिया में बैठे थे जब मैंने ये जिक्र छेड़ा।
कितने बजे? चाय का खाली कप अपने सामने से हटाते हुए वो मुस्तफसिर हुए। रात 8 बजे। पापा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, मैं मुँह बनाते हुए बोला। तुम्हें आना पड़ेगा। मैं कतई कलामी करते हुए बोला, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जदीर समझने की कोशिश तो करो ना। अगर पापा ने मना कर दिया तो? तुम आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर अंकल से पूछ लेना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर पार्टी रात के बजाय दिन को ही हो जाएगी। मगर तुम्हारी शमूलियत ज़रूरी है, नहीं तो ताने दे दे कर जो मेरा जीना जीरन कर देगी। रक्षी अजीब से लहजे में बोली, इतना डरते हो उससे? बहुत डरने की नहीं, बस मैं उसके सामने नीचा नहीं होना चाहता। चलो ठीक है, मैं शाम के वक्त तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। और मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। अपना पर्स संभालते हुए वो उठ खड़ी हुई और मैं सर हिलाते हुए काउंटर की तरफ भर गया। रात के वक्त जब रक्षी की कॉल आई तो उस वक्त जो मेरे कमरे में ही थी। पापा मान गए हैं जी, रक्षी ने खुशी से भरपूर लहजे में इतला दी। शुक्र है, मेरे मुंह से बेख्तियार बेसाख्ता निकला। उसने शर्माते हुए पूछा, आप तो यूँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं जैसे मेरी मौजूदगी के बगैर सालगिरह का फंक्शन ही ना हो पाता है। इसमें शुबा ही क्या है? अच्छा, उसके लहजे में हल्का सा तफाखर दर आया। हाँ ना जान, तेरे बगैर तो अब पूरी ज़िंदगी ही फीकी और बेमज़ा लगने लगी है। वो आहिस्ता से बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, जानता हूँ। ओके, डिनर करके बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। और मैं मुंतज़िर हूँ सुनकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। किस बात पर शुक्र अदा हो रहा था मोहतरम? कॉल ख़त्म होते ही जो पूछने लगी। सुबह रक्षी कह रही थी कि अपने पापा की इजाज़त के बगैर उसका आना मुमकिन नहीं है, और अभी वो मुझे बता रही थी कि उसके पापा ने इजाज़त दे दी है। राजू, सचमुच वो जो तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। हाँ जो, बहुत ज़्यादा। वो आहिस्ता से बोली, अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मैंने जल्दी से कहा, आमीन। जो वाकई मेरे साथ बहुत मुखलिस थी। हम थोड़ी देर तक कल के फंक्शन के बारे में तफसीलात तय करते रहे और फिर रक्षी की कॉल आई तो वो सोने चली गई। छुट्टी के वक्त मैंने रक्षी को साथ चलने की दावत देते हुए कहा, अभी चलो ना मेरे साथ, पार्टी ख़त्म होने के बाद चली जाना। मैंने भी तैयारी करनी है जनाब, नए कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनी है, यूँ ही कैसे चली जाऊँ तेरे साथ? मैं शरारत से बोला, नए कपड़े और ज्वेलरी तो पहने ही हैं, अगर साथ में ढोल बाजी भी हो जाए। वो शर्मीली हंसी के साथ अपनी कार की तरफ भर गई। घर पहुंचा तो ज़ोर शोर से पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ नजर आई। वो अपनी निगरानी में सारा काम कराती है। 6 बजे रक्षी अपने ड्राइवर और पुलिस के एक सिपाही बॉडीगार्ड के साथ पहुंच गई। आहिर को एसपी की बेटी थी। उसे खुशामदीद कह के मैं ड्राइंग रूम में ले आया। जो गुस्ल खाने में थी। मैं रक्षी के साथ बैठा रहा। गुलाबी गरारे में वो किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आ रही थी। जो ने काले रंग का सूट पहना था जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की गई थी। दुपट्टा से लीके से सर पर जमाए वो हमारे पास पहुंची। इस वक्त मैं दबे लफ्ज़ों में रक्षी को खूबसूरती के गुन गा रहा था। चले मोहतरम, तैयार हो जाएं। उसने आते ही चुटकी बजाकर मुझे उठने का इशारा किया और रक्षी से मुसाफा करने लगी। अब तक तो काफ़ी वक्त पड़ा है, थोड़ी देर। वो कता कलामी करते हुए बोली, 6:30 हो चुके हैं और 8 बजे पार्टी शुरू होनी है। यूँ भी तूने तैयारी में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगाना है। एक तो तुमसे चाँद नहीं छोड़ती। उसे कहते हुए मैं रक्षी से मुखातिब हुआ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। रक्षी के चेहरे पर भी नागवारी के असरात ज़ाहिर हुए जिसे वो हंसी में छुपा गई। जो वहीं रक्षी के साथ बैठकर हम गप्पे हाँकने लगी। मैं बाथरूम में घुस गया, जल्दी शावर लिया और तौलिया लपेट कर बाहर निकला। बेड पर नया सूट प्रेस किया हुआ था, जो लाजमी बात है जो ने ही रखा था। सूट पहनकर मैंने टाई की तलाश में नजरें घुमाई, मगर बेड पर टाई नजर न आई। मैंने ज़ोर से पुकारा, जो की बच्ची, टाई कहाँ है? अलमारी में दाएं तरफ के हैंगर से लटकी है ना? उसने भी वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दी। कौन सी बांधनी है? मैंने अलमारी खोली और हैंगर से लटकी दर्जन भर टाइयों को देखकर उसे आवाज़ दी, नई वाली कौन सी है? मुझे तो सारी ही नहीं लग रही हैं। मैरून कलर की है ना? वो भी वहीं से जवाब दिए जा रही थी। जराबें तो बूटों में रखती होती हैं। खाली बूट देखकर मैं झिझलाया। बूटों में ही है, नए वाले बूटों में रखी है। मैं माथे पर हाथ मारकर शूज़ रैक की तरफ बढ़ गया। रिस्ट वॉच पुरानी वाली ही पहने रखूँ? ड्रेसिंग टेबल पर रखी है नई वाली। घड़ी पहनकर मैंने बाल संवारे और टाई के नोट दुरुस्त करता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। जो अभी तक रक्षी के साथ ही बैठी थी। रक्षी के चेहरे पर मुझे अजीब से तासुरात नजर आए जिन्हें मैं कोई नाम देने से कासिर था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसके सामने बैठते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। वो मुझे सख्त उलझी सी लगी थी। राजू, आप दोनों गप करो, मैं ज़रा मेहमानों को खुशामदीद कह लूँ। जो उठकर चल दी। रक्षी, सच बताओ क्या बात है? मैंने दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से पूछा। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। जो अम्मी जान और चची जान ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर मेहमान आने वाले ख़वातीनों हज़रात को खुशामदीद कह रही थी। वो मुझसे नज़रें चुराती हुई बोली, कुछ भी तो नहीं, मगर मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे। मगर मैं बात पूरी नहीं कर पाया। मेरी मामूज़ाद शहला ने करीब आकर पूछा, अस्सलाम वालेकुम जदीर भाई, ये कौन है? आओ शहला, ये रक्षंदा है। मैंने खड़े होकर उसके झुके हुए सर पर हाथ रखा। वो जो की हम उबर थी। इस वक्त मामू जान मेरे करीब है। कैसे हो बरखुरदार? उसने बाजू खोलकर
مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ماموں جان، میں مسرت سے بولا۔ اس کے بعد مجھے رکشی سے بات کرنا نصیب نہیں ہوا۔ مہمانوں کی آمد رفت جاری رہی اور پھر میں نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا۔ جب سے زو پیدا ہوئی تھی میں کیک کاٹ کر سب سے پہلے اسے ہی کھلاتا تھا۔ اسی طرح اپنی سالگرہ پر وہ مجھے کھلاتی۔ جب کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اپنی نگاہیں رکشی کی تلاش میں دوڑائی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی وقت گھر میں کام کرنے والی مریم بوا ہاتھ میں گفٹ پیک لے کر میرے قریب آئی۔ چھوٹے صاحب جی، یہ پیکٹ وہ خوبصورت سی کڑی جو گلابی غرارے میں پہنے ہوئے تھی وہ دے گئی ہے، کہہ رہی تھی مجھے جلدی میں جانا پڑ رہا ہے، میری طرف سے تم چھوٹے صاحب کو دینا دا۔ میں نے جلدی سے سیل فون نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ جی، اس نے پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی۔ میں شکوہ گناہ ہوا رکشی، کیا بات ہے؟ تم پارٹی کے شروع ہوتے ہی غائب ہو گئی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ کیونکہ پارٹی میں آنا میری غلطی تھی۔ جہاں آدمی کی ضرورت نہ ہو وہاں جانا اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف ہوتا ہے، جو میں کروا چکی ہوں۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ جدیر صاحب پلیز دوبارہ رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرنا، میں تم سے دور ہی بھلی۔ میری بے وقوفی کے پہلی ٹھوکر سے سبق نہیں سیکھا؟ اور پھر خیر، اللہ حافظ۔ اس نے اپنی بات پوری کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے پورا فنکشن پھیکا اور بے مصاب محسوس ہونے لگا۔ اسی اثناء میں زوم میرے پاس آ گئی۔ رکشی نظر نہیں آ رہی؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ وہ چلی گئی ہے واپس؟ کیوں؟ اس کی حیرانگی میں مجھے خوشی جھلکتی محسوس ہوئی۔ اس کی مرضی، کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے میں شامل تلخی نہیں چھپا سکا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی یا کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اسے؟ زو کا استفسار جاری تھا۔ محترمہ، میں اس کا سیکرٹری نہیں ہوں، اسے کہہ کر میں اپنی پھوپھیزاد ڈاکٹر جمشید کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ سوری جدیر، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے گفٹ پیک میری طرف بڑھاتے ہوئے معذرت چاہی۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کوئی بات نہیں جمشید صاحب، دیر سویر تو زندگی کا حصہ ہے۔ کیسی ہو عذرا؟ وہ زو کی طرف متوجہ ہوا، مسکرائی۔ فٹ اینڈ فائن جمشید بھائی، پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ وہ زو سے پوچھنے لگا اور میں وہاں سے کھسک گیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چند منٹ بعد زو بھی ملازموں سے تحائف کا ڈھیر اٹھوا کے وہاں پہنچ گئی۔ تمام پیک شدہ تحائف کارپٹ پر ترتیب سے رکھوا کر اس نے ملازموں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ اب بتاؤ رکشی کیوں واپس چلی گئی؟ مجھے نہیں پتا، میں سخت اپسیٹ تھا۔ تو کال کر کے معلوم کر لو، ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اسے سچ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا پتہ ہے میں نے تیرے لیے کیا خریدا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ خریدی ہوگی کوئی بیہودہ چیز۔ راجو، آج کل تم کچھ بدلتے جا رہے ہو۔ نہیں، بلکہ تیری سوچ بدل گئی ہے۔ اور اب پلیز مجھے سونے دو۔ میں بحث کیے بغیر کمل میں ہو گیا اور وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ یقیناً ہم دونوں کے درمیان وہ پہلے والا خلوص مفقود ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی یوں رخصت نہ ہوتی۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ رکشی کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے ہاتھ میں تھامے کپ سے چائے کی چسکی لینے لگی۔ میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کچھ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رکشی، کوئی بات تو ہے کہ تم میری سالگرہ کی محفل کو بیچ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے اندر ابلنے والے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ ہر کوئی ہوتا ہے، مگر دوسرے کے احساسات کا خیال کیے بغیر اپنی مرضی چلانا مناسب فعل نہیں۔ واہ، کیا کہہ رہے ہیں دوسروں کے احساسات؟ چھلنی کہتی ہے کوزے کو کہ تم میں دو سراغ ہیں۔ رکشی کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر طنز بھرا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میں پھٹ پڑا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، مسٹر جدیر، جب تم اپنا لباس بھی اپنی پیاری کزن کی مدد کے بغیر بدل نہیں سکتے، ٹائی تک باندھنے کے لیے اس کی مرضی پوچھتے ہو، تمہاری ایک ایک چیز کا خیال وہ یوں رکھتی ہے جیسے محبت کرنے والی بیوی ہو، پھر مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہی تو رہ گیا۔ میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں، پھر اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہے۔ محترم، وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے کہ یوں ہر کام میں دخیل ہو۔ باقی تمہاری امی جان الحمدللہ زندہ ہے، تمہاری دیکھ بھال تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا؟ تم خام خواہ شک کر رہی ہو۔ نہیں، میں یوں ہی شک نہیں کر رہی۔ بدقسمتی سے کل جب میں آپ کے گھر سے نکل رہی تھی اسی وقت رکشے سے اترتی رضیہ مجھے مل گئی۔ غریب تجدید تعلقات کے لیے آئی تھی کہ اسے بھی جناب کا دعوت نامہ ملا تھا۔ وہ مجھے جب واپس جاتا دیکھ کر میری آمد کا مقصد پوچھنے لگی، اور جب میں نے بتایا کہ کس لیے آئی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی واپس چل دی۔ میں اسے اپنے گھر لے گئی جہاں اس نے تفصیل سے تمہاری معاشقوں پر روشنی ڈالی۔ سمینا رانی، سنبل، پنکی، کرن وغیرہ جو جناب کی دولت و شکل و صورت کی دھسی ہوئی ہیں، تمام کے بارے میں مکمل آگاہی دی، بلکہ 2-3 سے تو بات بھی کرا دی۔ اب آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے چپ لگ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ جدیر صاحب، آپ کی چپ ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ رکشی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ گو کافی لڑکیوں سے میرا افیئر چلا، مگر یقین مانو وہ وقتی فلرٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب تک مجھے تم نہ ملی میں کٹی پتنگ بنا رہا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا میری چاہتوں کو مرکز مل گیا۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں، مگر مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جو کل میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ معلوم ہے
تم نے جو باتیں اپنے بیڈ روم سے کی، عذرا صاحبہ اس سے 2 منٹ پہلے ان کی پیشن گوئی کر چکی تھی۔ اس نے کہا محترم نہا کر نکلیں گے تو سوٹ تو پہن لیں گے، لیکن جناب کو ٹائی نہیں ملے گی، اور وہی ہوا۔ تم نے ٹائی کی بابت پوچھا، تمہیں ٹائی کا بتا کر وہ بولی اب یہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گا، اور تو نے یہ بھی پوچھا۔ پھر جرابوں والی بات، ہر بات کے بارے میں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور آخر میں اس نے یہ بتایا کہ کیک کاٹ کر تم سب سے پہلے کس انداز میں اور کتنا بڑا ٹکڑا کس ہاتھ سے اس کی طرف منہ کی طرف بڑھاؤ گے۔ اور جب میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی تو مجھے اپنا وہاں رہنا بے فائدہ لگا۔ نہیں جدیر، نہیں، نہ خود کو دھوکے میں رکھو اور نہ مجھے ہی غلط فہمی میں مبتلا رکھو۔ رکشی، یقین مانو ایسا کچھ نہیں۔ اپنے الفاظ مجھے خود بھی بہت کھوکھلے اور بے اعتبار سے لگے۔ وہ ہنسی، تلخی سے ہنسی۔ قص نفسی ہے جناب کی، اس کا مداوع ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ یہی ایک صورت ہے کہ میری آنکھیں اس منحوس کا چہرہ تیرے قریب نہ دیکھے۔ رکشی کے لہجے میں ذوق کے لیے خوب زہر بھرا ہوا تھا۔ دیکھو رکشی، کوئی ایسی بات کرو جو ممکن ہو۔ واقعی ہی ناممکن ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھے اسے تکتا رہا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں چاہے جتنی کوشش کر لیتا، زو سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے قطع تعلق تو ضرور کر سکتا تھا، مگر گھر تو میرا نہیں تھا کہ اسے بے دخل کر دیتا۔ میں اسی وقت گھر واپس آ کر لیٹ گیا۔ رکشی نے مجھے عجیب ہی امتحان میں ڈال دیا تھا، اور یہ ساری کارستانی زو کی تھی۔ میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا گیا، اتنی زیادہ ہی مجھے زو قصوروار نظر آتی۔ اسے کیا ضرورت تھی رکشی کے سامنے شہیاں بکھارنے کی؟ وہ میری ہر عادت، ہر خصلت سے واقف صحیح، مگر کیا ضروری تھا کہ یہ معلومات میری ہونے والی بیوی سے بھی شیئر کرتی؟ اسی کی وجہ سے میری پہلے والی تمام محبوبائیں خفا ہوئیں۔ ان تمام سے بچھڑنا ہی ہنسی خوشی برداشت کر گیا تھا میں، مگر رکشی کے متعلق میں سنجیدہ تھا۔ میں کافی دیر انہی خیالات میں کھویا رہا، یہاں تک کہ وہ کالج سے واپس آ گئی۔ ہائے راجو، آج چھٹی کر لی تھی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چہکی۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ خیر تو ہے، پریشان دکھ رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سٹ میری سے کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے سر سے ہٹا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ چند لمحے وہ ششدر بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرا قصور تمہارا نہیں، میرا ہے۔ میں نے اپنے اندر جمع ہونے والے زہر کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ میں نے تمہیں اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ آج کوئی لڑکی میری شریک حیات بننے کے لیے تیار نہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری، کسی کو پرپوز کر کے تو دیکھو۔ پرپوز؟ آج رکشی نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے۔ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں اسے الو بنا رہا ہوں۔ آخر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے میری نفسیات کا ماہر بننے کی؟ راجو، میں نے ایسا اسے کیا کہہ دیا ہے؟ تمہارے لیے اس دن میں خود اس کے پاس معافی مانگنے گئی تھی، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد بھی وہ خفا ہے تو باہر میں جائے، وہ نہ صحیح تجھے کوئی اور مل جائے گی۔ میں ترکی بد ترکی بولا، تم کیوں نہ باہر میں جاؤ؟ شٹ اپ یار، موڈ خراب مت کرو۔ مس عذرا پلیز، آپ تشریف لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ عذرا؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار میں نے اسے عذرا کہا تھا، ورنہ کیا کہنا، کیا میں اسے سوچتا بھی زو تھا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے خود اسے عذرا کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر غصے کے اظہار کا مجھے اور کوئی طریقہ نہ سوجا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر مرے مرے قدم لیتی میری خوابگاہ سے نکل گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے میں کوئی نام نہیں دے سکا، مگر میں نے اسے روکنے یا منانے کی کوشش نہ کی اور یوں ہی خاموش پڑا رہا۔ دن کا کھانا میں نے نہیں کھایا تھا اور یقیناً وہ بھی نہیں کھا سکی تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ہمارا سامنا ہوا۔ ہم دونوں خاموش خاموش سے تھے۔ والدین نے لازماً ہماری خاموشی کو نوٹ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہمیں جتلایا نہیں۔ یوں بھی یہ خاموشی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، البتہ میرا وجدان کہہ رہا تھا یہ خاموشی بالکل نئی اور انوکھی ہے۔ دن کو کھانا نہ کھانے کے باوجود میں صحیح طریقے سے نہ کھا سکا۔ یہی حال زو کا بھی تھا۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد وہ بھی سویٹ باؤل لے کر بیٹھ گئی، جبکہ میں سے چھینکنے لگا۔ چچا جان اور ابو جان کسی کاروباری سلسلے میں مصروف گفتگو تھے۔ گاہے گاہے امی جان اور چچی جان بھی انہیں لقمہ دینے لگتی۔ وہ جیسے ہی کھانا کھا کر اٹھے، ہم دونوں اپنی اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ اگلی صبح میں نماز کے بعد ٹریک سوٹ پہن کر پارک چلا گیا اور جان بوجھ کر دیر سے لوٹا تاکہ وہ کالج نکل جائے۔ واپسی پر کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا کہا۔ وہ حیرانی سے بولی، چھوٹے صاحب؟ جی چھوٹے صاحب کہہ کر رہ گئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے ناشتے کے بارے میں کہا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے وہ مجھے کالج کی یونیفارم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ نصاب کی کوئی کتاب کھولے وہ مطالعے میں مصروف تھی۔ تم کالج کیوں نہیں گئی؟ میں نے سرسرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے گول چہرے سے میری جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی شہد آ گئی آنکھوں میں اداسی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ آئی ایم سوری جدیر، وہ واقعی میری وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہوئی، مگر بخدا میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اب آپ کو میری وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔
मैं एकदम तुमसे आपके दर्जे पर तरक्की पा गया था। उसका जदीद कहना भी मुझे बहुत बुरा लगा, मगर हमारे ताल्लुकात एकदम इस नहज पर आ गए थे कि इतराज़ की गुंजाइश ख़त्म हो गई। इट्स ओके, मैं सपाट लहजे में बोला। अच्छा खफा ना हो, मैं रक्षी को मना लूँगी। अच्छा खफा ना हो, मैं रक्षी को मना लूँगी, मैं होंठ चबाता हुआ बोला। उसकी एक ही शर्त है कि आप इस घर से भी दूर चली जाएं। जो यकीनन नामुमकिन है। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही और फिर पूछने लगी, नाश्ता लाऊं? मैं उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मुलाजमा को बता आया हूँ। उसने शाकी नज़रों से मुझे घूरा। पलकों का पुश्ता बड़ी मुश्किल से सलाबी रेले को रोके नजर आ रहा था और फिर शायद पलकों की हिम्मत जवाब देगी कि उसने एकदम रुख मोड़ा और दरवाजे की जानिब चल दी। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर दबा रहा है। वो मेरी मुखलिस दोस्त और राजदार थी, मगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं उसे खुद से दूर करने पर मजबूर हो गया था। मुलाजमा नाश्ता लेके आई तो मैं उस पर बरस पड़ा। जब तुझे पता है मैं उबला अंडा नहीं खाता, फिर अंडा लाने की क्या ज़रूरत थी? और दूध नहीं, मैं मिल्क शेक लेता हूँ। नहीं मालूम तो था तो पूछ लेती मुझसे। माफ़ी चाहती हूँ छोटे मालिक, आज पहली मरतबा आपके लिए नाश्ता ला रही हूँ ना। आंधा ख्याल रखेगा। अच्छा ये वापस ले जाओ। मैं वो मुश्किल नॉर्मल होता हुआ बोला, और फिलहाल मेरा मूड नहीं है, इसलिए मिल्क शेक भी लाने की ज़रूरत नहीं। वो खामोशी से सर हिलाते नाश्ते की ट्रे वापस ले गई। मैं उस दिन काफ़ी लेट यूनिवर्सिटी पहुंचा। मज़ा यूनिवर्सिटी के सब्ज़ बाज़ार में बैठा मूंगफली ठोंक रहा था। अजी राहगीर साहब, आज तो शायद छुट्टी मनाने के मूड में हो। दोपहर हो रही है और तुम्हें भी आंखें मलते यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो। बस यार क्या बताऊं, अपने तो सितारे ही गर्दिश में है। मैंने उसकी बगल में बैठकर उसके सामने पड़े कागज़ के लिफाफे से मूंगफली के चंद दाने उठाता हुआ बोला, ये कमबख्त सितारे तो रहते ही गर्दिश में है मियाँ। सही कहा, मगर मेरी सितारों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। शायद रक्षी भाभी से झगड़ा हो गया है, आप अलैदगी कह सकते हैं। मैंने लहजे में इत्मीनान पैदा करने की कोशिश की। वजह? उसका मुख्तसर सवाल तफसील का मुतकाज़ी था। मैंने तफसील में जाने की बजाय मुख्तसर और जामिया जवाब देना पसंद किया। ओफ, वो सर पकड़ता हुआ बोला, अज़रा बहन भी क्या चीज़ है। आज तो उससे भी ख़त्म कर आया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। वो हैरानी से बोला, यकीनन मैं तुम्हारी बात सुनने में गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया, तुम्हारी समातों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो यकीन से बोला, फिर तुम गलत बोल गए हो, ऐसा भी नहीं है। मैंने मूंगफली का छिलका तोड़कर दाना मुंह में डाला। उसने मुंह बनाया। दर्जनों नाज़रीनों को खफा करने के बाद, हालांकि ये काम तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। उम्मीद है मैं रक्षी को मना लूँगा। मेरे लहजे में उम्मीद का अंतर नुमाया था। कुछ ऐसा ही मुझे भी लगता है, अगर आपकी अज़रा वाली बात दुरुस्त है तो। बिल्कुल दुरुस्त है। और अब मैं चला। मैंने दूर से रक्षी को ताड़ लिया था। वो सुस्त कदमों से कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी। ओके जनाब, उसने इस बात में सर हिलाया और अपना शोर जारी रखा। कैफेटेरिया में दाखिल होकर मैंने उसी हाल में निगाह दोहराई। वो मुझे अकेली बैठी नजर आई। मैं सरत से उसकी जानिब बढ़ा। मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठे प्लीज़, कहकर वो खुद उठी और बाहर की जानिब चल दी। मैं फनकों की तरह उसकी पुश्त तकता रह गया। वो राज़ी होने के मूड में नहीं थी। चलो भाई, चंद दिन मज़ीद देख लेते हैं। मैं खुद कलामी करते हुए बैठ गया। मेरा सर भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने चाय पीना मुनासिब समझा। वापसी पर मैं कमरे में घुसा और रात का खाना भी वही मंगवाया। सुबह का नाश्ता मेरे लिए मुलाजमा लेके आई। अगले दिन रात को डाइनिंग टेबल पर जोर से मुलाकात हुई। वो खामोश खामोश सी थी। मुझसे नज़रें मिलाए बगैर वो खामोशी से खाना खाती रही। मुझे लगा हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हाइल हो गई है। खाने के दौरान ही अचानक से चाचा ने उससे मुखातिब हुए, तो ये तेरा आखिरी हमीदा है? जी अबू जान, वो इत्मीनान से बोली। कल जमशेद के घर वाले आ रहे हैं। अच्छा ये होगा तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी अबू जान, वो इत्मीनान से बोली। कल जमशेद के घर वाले आ रहे हैं, ये किस फैसले की बात हो रही है भाई? अबू जान ने हैरानगी से पूछा। आपकी लाडली भतीजी की शादी की? चची जान ने तल्खी से जवाब दिया। हाँ, अज़रा की शादी और जमशेद से। अम्मी जान शर्मसार रह गई। अबू जान भी हाथ में तोड़ा हुआ निवाला वापस प्लेट में रखकर अपनी भावज यानी चची जान की तरफ मुतवज्जा होगी। इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर अपने भाई और भतीजी से पूछे भैया? चची जान सख्त गुस्से में थी। चचा जान जो अबू से मुखातिब हुई, डॉक्टर जमशेद और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। फूफी जान भी हमारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। मगर एकदम जमशेद से कैसे बात चल रही पड़ी? मतलब मैंने तो। अबू जान की हैरानगी बेजा नहीं थी। एकदम नहीं चचा जान, पहले वो तालीम के सिलसिले में मसरूफ़ थे और अभी फारिग हुए हैं। वैसे फ़ोन पर काफ़ी अरसे से हमारा रब्ता है। उसने सरीहन झूठ बोला, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अबू जान खड़े हो गए। उन्होंने बस दोने वाले ही लिए थे। अबू जान की तरह अम्मी जान भी सख्त अपसेट नज़र आने लगी। बल्कि मैं जो कब से उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि ज़ो की तलवार मेरे सर से हटेगी, अचानक मुझे महसूस हुआ कुछ गलत होने जा रहा है। मेरा दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। अबू और अम्मी जान के साथ चची और चचा भी डाइनिंग टेबल से वॉकआउट कर गए। मैं और जो अकेले हुए तो अब वो आहिस्ता से बोली, जदीद
पिछले 1 साल से जमशेद मुझे कॉल और मैसेज कर रहा है। सॉरी कि मैं आपको मुतला ना कर सकी। असल में मैं खुद पहले ही संजीदा नहीं थी, मगर कल सारा दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इससे बेहतर रिश्ता अब शायद मुझे न मिल सके। इसलिए कल रात ही मैंने उससे मोबाइल फ़ोन पर बात कर ली थी। मेरी वजह से जाने उसने कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं। आज सारा दिन हमने इकट्ठे गुजारा। फूफा जान से भी बात हुई, वो भी बहुत खुश है। आप बस चंद दिन इंतज़ार कर लें। जमशेद ने वादा किया है वो मुझे 1 हफ्ते में ब्याह कर ले जाएगा। तालीम बाकी की मैं वही मुकम्मल कर लूँगी। वो इसके अलावा भी बहुत कुछ कहती रही, मगर मेरे दिमाग में साएँ साएँ हो रही थी। ज़ो जमशेद के साथ घूमती रही थी। दोनों ने इकट्ठे खाना खाया होगा, पार्कों में घूमते रहे होंगे, कह के बिखेरते होंगे। उसने ज़ो के हाथों को थामा होगा, मोहब्बत बड़ी सरगोशियाँ की होगी, ज़ो शर्माई होगी। मेरी आंखों में कई अनदेखे मनाजिर घूमगे। और फिर ज़ो की बात जारी थी कि मैं एक झटके से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे कमरा बिल्कुल खाली खाली सा लगा। टीवी पर चलने वाली खबरों का हंगामा भी मेरे कमरे की खामोशी को दूर करने में नाकाम नजर आ रहा था। ज़ो किसी और के साथ कैसे घूम सकती थी? वो किसी की दूसरे की बात पर कैसे हंस सकती थी? उसे कोई और कैसे छू सकता था? वो तो मेरी थी, सिर्फ मेरी ज़ाती जगह। मगर ये क्या हो गया? 1 हफ्ते के बाद वो जमशेद की बीवी होगी। मैंने अंडे नहीं खाने। जमशेद नखरे से कहेगा और ज़ो बड़ी चाहत से उसे नाश्ता कराएगी। उठ भी जाए ना। ज़ो ने जमशेद के ऊपर से कंबल खींचा। मैंने बेख्तियार आंखें खोल दी। सामने दीवार पर ज़ो का हंसता हुआ चेहरा नजर आने लगा। वो ट्रॉफी वसूल करते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। यकीनन जमशेद भी इसी तरह खुश होगा। ज़ो एक ट्रॉफी ही तो थी। मैं बेचैनी से टहलने लगा। ये क्या हो गया? क्या मैं शुरू से ही ज़ो से मोहब्बत करता था? मगर ये मोहब्बत अब तक कहाँ छुपी थी? मैं खुद को कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। जब दूसरी लड़कियों से गप्पे हाँकते थे, इश्क लड़ाते थे, उस वक्त ज़ो की मोहब्बत कहाँ गायब थी? मैं खुद को मलामत करने लगा। शायद मैंने सोचा था ज़ो हमेशा इसी तरह इस घर में रहेगी। उसने किससे शादी करनी है? वो भला कहाँ किसी को पसंद कर सकती है? हाँ, बात कुछ और थी। मैं और समझ बैठा था। मैं सर थाम कर इजी चेयर पर बैठ गया। वो मेरे अंदर मुसलसल ज़लज़ले उठ रहे थे। जाने रक्षी की दूरी का दुख कहाँ जाए सोया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद कलामी करता हुआ उठा और ज़ो के कमरे की तरफ बढ़ा। और फिर मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मेरे कानों में उसकी मधुर आवाज़ गूंजी। बस सोने लगी हो ना? सारा दिन तो इकट्ठे गुजारा है। मैं एकदम रुक गया। वो किसी से गप्पे लगा हाँक रही थी। मुझे लगा मेरी सांसें रुक रही हैं। रक्षी मेरे सामने नुमान के साथ बैठ कर गप्पे हाँकती रही थी, मगर मुझे महसूस तक नहीं हुआ। आज जो फ़ोन पर बात कर रही थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो हंसी। नहीं जी नहीं, 12 बजे तक तो मैं कभी नहीं जागी। वो खामोश हो गई। यकीनन जमशेद की बात सुन रही थी। तब की तब देखी जाएगी। ये बात करते हुए भी वो शर्माते हुए अंदाज में हंसी थी। वक्फे के बाद बताया ना, मुझे 11 बजे के बाद जागने की आदत नहीं। यकीन मानो राजू के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक गप होती थी, वो भी संडे नाइट को। थोड़ी देर वक्फे के बाद वो फिर बोली, इसमें खफा होने की क्या बात है? और राजू के साथ मैं खेल के जवान हुई हूँ। अम्मी अबू ने उसे मिलने की इजाज़त दी हुई थी। हाँ, अब आप मना करेंगे तो बात ये अलहदा बात है। हल्का सा वक्फा। हाँ हाँ हाँ, किसी से भी नहीं मिलने दोगे? वाह जी वाह, ये खूब रही। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं मिलूंगी किसी को भी। और कोई हुक्म सरकार का? मज़ीद सुनना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे अपने पाँव पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। एक दिन मैं वो इतना आगे बढ़ गए थे। मुझे जोया पे बेतहाशा गुस्सा आया, मगर फिर गुस्से की रोह मेरी अपनी ज़ात की तरफ बहकने लगी। ये सारा किया धरा मेरा अपना ही था। मैंने हमेशा ज़ो को अपना ज़रा खरीद समझा था, कभी उसके नाजुक एहसासात का ख्याल रखने की कोशिश नहीं की। अब उसे एक चाहने वाला मिल गया था तो मुझे एतराज़ नहीं होना चाहिए था। उसने भी तो कभी मेरी चाहत पर एतराज़ नहीं किया था। उसे तो मुझसे मोहब्बत नहीं थी, तभी उसने कभी एतराज़ नहीं किया। मेरे दिल ने एक बोगस दलील दी और मैं लड़सता कांपना अपने कपड़े की तरफ बढ़ गया। मैं बदिक्कत तमाम अपने बेड तक पहुंचा था। मेरी टांगें लरज़ रही थी। मैं औंधे मुंह ज़मीन बेड पर गिरा और माही बे आपकी तरह तड़पने लगा। मेरा सासा मुझसे छिन गया था। मेरी ज़ो किसी और की हो गई थी। वो ज़ो जिसे मैं हर बात मनवाने की ताकत रखता था। मुझसे पिट कर भी वो मेरी ज़रूरियात से गाफिल नहीं होती थी। सर्दी गर्मी में मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इसका ख्याल वो अम्मी जान से भी ज़्यादा रखती। अब वो डॉक्टर जमशेद का ख्याल रखेगी। मेरे सीने में दर्द उठने लगा। तब की तब देखी जाएगी। मेरे दिमाग में ज़ो के अल्फाज गूंजे। यकीनन जमशेद ने उसे मेरे करीब जाने से रोका था और अब तो ये हक उसे हासिल होने वाला था। अगर आइंदा तूने देर से बात की तो खार उतार दूंगा। जमशेद मुझे ज़ो को डांटता हुआ नजर आया। मैं सीधा होकर लेट गया। अचानक मुझे सर्दी महसूस होने लगी, मगर मैं उसी तरह लेटा लगा। अजीब किस्म की नकाहत महसूस हो रही थी, जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर था। जब सर्दी का एहसास हद से बढ़ गया तो मैं रेंगता हुआ कंबल के अंदर घुस गया। मेरी नज़र दीवार से टंगी
ज़ो की तस्वीर पर पड़ी। वो हंस रही थी, हंसते हुए बहुत प्यारी लगती। गोल चेहरा, शहद आ गई आंखें, स्मार्ट डोल बदन, खुलता हुआ बादामी रंग, नटखट शरारती। मैं ज़ो को सोचता रहा। समीना, रानी, पिंकी, किरण, सुंबल, अख्तस, रसिया और रक्षी का ख्याल जाने कहाँ जा चुका था। ज़ो ने सिर्फ ज़ो और सिर्फ ज़ो मेरे शऊर से लाशऊर तक फैल गई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मैं कभी किसी के लिए नहीं रोया था, आज उसके लिए रो रहा था जिसे जाने कब से रुलाता आ रहा था। जब मैं उसे अपने किसी नए माशरे की खबर देता तो उस पर भी यही बीतती होगी। तो क्या तुम्हें लड़कियों की कमी है? मेरे हर माशरे के एक खात्मे पर वो इस फिक्रे के साथ मेरा खैर मकदम करती, अपनी ज़ात को पेश करती, उम्मीद भरी नज़रों से मेरी जानिब घूरती। मगर मेरी अंदर उभरते एहसास बर्तरी ने कभी उसकी आंखों की इल्तिजा को महसूस न किया, कभी उसके होंठों की लर्जिश पे गौर न किया, उसकी मुंतज़िर चतौन को अहमियत न दी, वो कुशादा पेशानी को कि जिसको देखकर उफ़क़ की लामहदूदियत का एहसास हो, उसे कबूल न किया। वो गहरी शहद आ गई आंखें जो बहरुल काहिल की सी गहराई लिए हुई थी, मेरे नज़दीक बेहैसियत रहती। काश मैं कभी आंखें बंद करके अपने अंदर झांक लेता। मैं सर्द आह भरी मंजिल मेरे कदमों में थी और मैं उसे संगे राह समझकर आगे की तरफ निकलता चला गया। मगर मैं ऐसा मुसाफिर था, दायरे में सफ़र कर रहा था कि हर बार मंजिल को छू लेता और फिर आगे बढ़ जाता। अब अचानक अपने दायरे से निकलना पड़ा तो समझ लगी कि मंजिल को तो बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, इतना पीछे कि वापसी भी नामुमकिन हो गई थी। जो मुझे माफ़ कर देना। मेरी सिसकियाँ निकलने लगी। अगर अभी उसके पास चला जाऊँ, उसे सब सच बता दूँ, मगर वो तो हमेशा से वादे वईद मगर वो तो जमशेद से वादे वईद कर चुकी है। अब वो उसे कहाँ छोड़ने पर तैयार होगी। जमशेद एक वजीर लड़का था और फिर डॉक्टर होने के अलावा रिश्तेदार भी था। उम्मीद वासिक थी कि वो इनकार कर देती, मेरी अना, मेरी गरूर की धज्जियाँ बिखर जाती, सारी ज़िंदगी के लिए ज़ो को हंसने का बहाना मिल जाता। अच्छा जनाब, बहुत ख्याल आ गया कि आप मुझे चाहते हैं, लेकिन सॉरी कि अब मुझे एक आइडियल शरीक हयात मिल गया है। बेवकूफ़ थी जो तुमसे उम्मीदें बांधे हुए थी। तुम्हें खुद अपनी चाहतों से फुर्सत नहीं, मुझे खाक समझाते। बराए मेहरबानी अब मेरा पीछा छोड़ दो, सब कुछ ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह। मैं परोए कबाब की तरह करवटें बदलता रहा। पलकों ने इतनी एरियाँ रगड़ीं कि जमजम जारी हो गया, जो तुरुए सहर तक मुसलसल जारी रहा। वो जो मेरी हल्की सी तकलीफ पर तरफ उठी थी, आज मेरी हालत से बेखबर सो रही थी और उसमें अब बेखबर ही रहना था। अपनी कश्तियाँ तो मैं खुद चला चुका था। पहले तो वो नाश्ता लेने आ जाती थी, मगर परसों उसके नाश्ता लाने के इस्तफसार पर मैंने मुलाजमा को नाश्ता लाने का बता दिया है कहकर उसके जज्बे की कितनी तौहीन की थी। सब कुछ दुरुस्त, मगर उसने एकदम मुझे छोड़ने का फैसला क्यों किया है? एक नई सोच मेरे दिमाग में जागी। उसके साथ ही मुझे याद आया, मैंने खुद परसों सुबह उसे बताया था कि रक्षी मेरी ज़िंदगी में उसी सूरत आ सकती है कि जो इस घर से कहीं गायब हो जाए। यकीनन इसी वजह से उसने जमशेद पर टटपंगनी पर ब्याह का जोर दिया होगा। मैं सोचता तड़पता सिसकता रहा, यहाँ तक कि मौज़न को मेरे हाल पर रहम आ गया और वो अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करने लगा। मैं बमुश्किल वज़ू करके वॉशरूम तक जा सका। नमाज मैंने कमरे में ही पढ़ी और दुआ के लिए जब हाथ उठाए तो अल्फाज ख़त्म हो चुके, सिर्फ सिसकती सोचे और लरसते ख्याल बाकी थे। जाए नमाज से उठकर मैं दोबारा बेड पर लेट गया। अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। ये ज़ो के आने का वक्त था। वो इस वक्त मेरे लिए नाश्ता लाया करती थी, मगर उसने कभी दस्तक देने की जहमत गौरा नहीं की। अब शायद मुलाजमा थी और लाजमन उसने ज़ो से मेरे नाश्ते का वक्त वगैरह मालूम कर लिया था। दस्तक के जवाब में ये फ़कत इतना कह सका था, दरवाज़ा खुला और मैं शस्तर रह गया। ज़ो नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। सॉरी जदीर, आखिरी हफ्ता मुझे बर्दाश्त कर लो, वो ट्रे तपाई पर रखते हुए बोली। अभी उसकी निगाह मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी थी और नामुमकिन था कि उससे मेरा हाल छुपा रहता। वो तो मेरी रग रग से वाकिफ़ थी। ट्रे रख कर जैसे ही सीधी हुई, उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी और अगले लम्हे वो तीर की तरह मेरी तरफ भरी। राजू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वो सरहद से मेरे करीब हुई और मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। उसके मुलायम हाथ की तासीर मेरी रूह में उतर गई। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा मसीहा मेरे करीब आ गया। उफ़, तुम्हें तो सख्त बुखार है, बुला नहीं सकते थे मुझे? वो सख्त परेशान हो गई। मेरे साथ बैठ के मेरा सर दबाते हुए उसने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी छोटी बीबी। मुलाजमा ने वहीं आने में देने हिल गई। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, राजू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। किस वक्त हुआ है बुखार? वो पुरानी वाली ज़ो लग रही थी। दिल चाहा कह दूँ, जिस वक्त से तूने हमेशा जमशेद वाली बात बताई है, मगर फिर मैं कुछ न कह सका। उसे वो
اس سے محسوس کرتا رہا۔ وہ سارا دن اور رات کا بیشتر حصہ میرے قریب میں گزار دیتی، مگر پہلے مجھے کبھی اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی محبت میرے لاشعور میں چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پتہ چلا وہ کسی اور کی ہونے والی ہے، وہ محبت پوری شدت سے ابھر کر سامنے آئی تھی۔ کاش یہ 2 دن ہماری زندگی سے محو ہو جاتے، کاش جمشید سے وعدے وعید کرنے سے پہلے اس نے مجھے مطلع کر دیا ہوتا، کاش اس سے پہلے کوئی ایسا موقع آیا ہوتا کہ میرے لاشعور میں دبی ذو کی محبت اسی طرح ابھر کر سامنے آ گئی ہوتی۔ کاش کاش کاش، یہ کاش بھی عجیب مایوسی بھرا لفظ ہے، جسے سنتے ہی دماغ میں یاسیت بھر جاتی ہے۔ میرے دل میں بھی مایوسی بھر گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو روکا ہوا تھا۔ گاڑی تیار ہے چھوٹی بیوی، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ تم چچی جان اور امی جان کو بتا دو، اسے کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ چلو اٹھو، اس نے میرے کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر سہارا دیا۔ میں چل سکتا ہوں، میں جلدی سے بولا، مگر اس نے میری بات پر بالکل دھیان نہیں دیا۔ میرا بازو اپنے ملائم کندھے پر ڈال کر مجھے ساتھ چلانے لگی۔ میری ٹانگوں میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ مجھے ساتھ لیے وہ کار کی عقبی نشست میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے مستعد عملے نے مجھے سرعت سے ایک PI کمرے میں منتقل کر دیا۔ میرے لیٹنے تک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ آتے ساتھ ہی وہ مستعدی سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ کافی تیز بخار ہے، اچھا کیا تم اسے یہاں لے آئی، اس نے تھرمامیٹر دیکھ کر ذو کو کہا اور تھرمامیٹر نرس کو پکڑا دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے رائٹنگ پیڈ پر میرے لیے میڈیسن لکھنے لگا۔ میڈیسن لکھ کر اس نے وہ صفحہ بیڈ سے پھاڑ کر نرس کے حوالے کیا اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ ذو ایک بار پھر میرے سرہانے بیٹھ کر میری پیشانی دبانے لگی۔ اس وقت امی جان اور چچا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ چونکہ یہ ہمارا فیملی ہاسپٹل تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہم یہیں آتے، اس لیے وہ بھی سیدھا وہیں پہنچی تھی۔ ہائے میں صدقے کیا ہوا میرے بیٹے کو، امی جان سے پہلے چچی جان مجھ سے آپ لپٹی۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان، میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذو کی جدائی کا صدمہ ایسا نہیں تھا کہ میں ہنس پاتا۔ امی جان بھی میرے بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کے آنے کے باوجود ذو نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ وہ اسی طرح محبت سے میرا سر دباتی رہی۔ نرس نے میڈیسن لائی، ذو اس سے ٹیبلٹس لے کر مجھے کھلانے لگی۔ گولیاں کھانے کے چند لمحوں بعد ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یقیناً ان ٹیبلٹس میں سکون آور ٹیبلٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ تبھی میں سو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ ذو وہیں ایک صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ وہ گاہے بگاہے میرے چہرے پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی، اس لیے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی وہ کتاب بند کر کے تیر کی طرح بیٹھ کے قریب آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ مار کر رکھ کر میرا ٹمپریچر محسوس کیا۔ بہتر ہوں، میں نے نقاہت سے بولا۔ اس نے بیل دے کر نرس کو بلایا اور کچھ کھانا لانے کے لیے ہدایت کی۔ چھوڑو ذو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ راجو، بچہ بننے کی ضرورت نہیں، اس نے مجھے سختی سے جھٹکا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کاش تو ہمیشہ مجھے جھٹکتی رہے۔ میرے اندر ایک اور کاش نے جنم لیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس دودھ کا گلاس، جیم لگا ٹوسٹ اور ابلا ہوا انڈا لے کر لوٹی تھی۔ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو صرف ذو مجھے کھلا سکتی تھی، اور اس وقت ذو میرے پاس ہی تھی۔ اس نے سہارا دے کر مجھے کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں ہمیشہ سے ان ہاتھوں سے کھاتا آیا تھا، لیکن کبھی مجھے قدر نہیں آئی تھی۔ اب جب کہ وہ ہاتھ کسی اور کی دسترس میں جانے والے تھے تو مجھے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ شاید بھلے وہ پہلے بھی لگتے تھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا۔ کھانے کا ایک ذرہ بھی پلیٹ میں نہیں بچا تھا۔ اس نے میڈیسن کھلا کر مجھے دوبارہ لٹا دی اور اپنے ملائم ہاتھوں سے مسیحائی کرنے لگی۔ میں زیادہ دیر اس چارہ گری سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ غنودگی ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گیا، جہاں ابھی تک ذو مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ ذو کی آواز سے کھلی۔ وہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ آنکھ کھولتے ہی مجھے جمشید کا چہرہ نظر آیا۔ ذو کی طرف متوجہ تھا وہ، جبکہ ذو کی میری جانب پوچھ تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ ذو کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ سوری راجو کے ٹھیک ہونے تک میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جمشید دبے دبے لہجے میں بولا۔ امی جان تمہارے گھر پہنچ گئی ہیں، صرف تمہارا انتظار ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ 2-3 دن بعد ہو جائے گی یہ رسم۔ مجھے رسم سے کوئی سروکار نہیں، یقینی طور پر 2-3 بعد بھی ہو جائے گی، مگر ذرا سوچو، جدیر کی امی جان حیات ہیں، یہاں بیٹھنا ان کا فرض بنتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تمہاری امی جان اسے اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ کہہ دیا نا، جب تک راجو ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور راجو بیمار ہوگا پھر کیا کرو گی؟ کیا اس وقت بھی مجھے چھوڑ کر اپنے راجو کے سہرانے بیٹھ جاؤ گی؟ جمشید کا سوال تلخ ہونے کے باوجود حقیقت پر مبنی تھا۔ آپ جو سمجھے، منظور سے جواب نہیں بن پڑا۔ عذرا، میں موما جان کو کال کر رہا ہوں، وہ یہاں آ جائیں گی، تم چلو میرے ساتھ۔ جمشید کی بات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور اس کوشش میں منہ سے کراہ جیسی آواز خارج ہوئی۔ راجو، ذو کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ سرعت سے میرے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، میں گڑبڑا کر رہ گیا۔
जदीर कैसे हो? जमशेद ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजा कर पूछने लगा। काफ़ी बेहतर हूँ। अच्छा, मैं खुद अज़रा को लेने आया था। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो ये घर चली जाती हैं, वहाँ से मुमानी जान आ जाएंगी। मैंने ठंडी आह भरकर इस बात में सर हिलाया। चलो अज़रा, अब तो जदीर ने भी इजाज़त दे डाली है। वो एक मरतबा फिर ज़ोर से मुखातिब हुआ, मगर वो सनियन सुनी करके नर्स को बुलाने के लिए बेल देने लगी। जी। मुस्तैद नर्स ने कमरे में दाखिल होते पूछा। यखनी ले आओ, ज़ो ने कहा और सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई। अज़रा मैं कह रहा हूँ। जमशेद दोबारा मुखातिब हुआ। बता तो दिया है मैंने, वो इत्मीनान से बोली। अच्छा, एक मिनट बाहर आकर मेरी बात सुनो। जमशेद इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। सुनो ज़ो, चली जाओ, मेरी देखभाल के लिए नर्स मौजूद है ना। मैं बहुत दिक्कत तमाम बोला था, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है। वो मुझ पर बरस पड़ी और मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली। तुम्हें मेरी बात सुननी है कि नहीं? इस मरतबा जमशेद के लहजे में धिरकने वाला गुस्सा बिल्कुल वाज़ेह था। मुंह संभाल के बात करो मिस्टर। जो एकदम भट पड़ी। शायद तुम्हें मेरी कोई बकवास समझ नहीं है। जब कह दिया कि राजू के ठीक होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो तुम्हें यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। इसका तेज़ लहजा और तल्ख बात सुनकर जमशेद हक्का बक्का रह गया। होश में तो हो? वो गुस्से से बोला। हाँ, होश में हो। और जाते वक्त अपनी अम्मी जान को भी घर लेते जाइएगा। मुझे ना तो रिश्तों की कमी है और ना ही मैं इतनी गई गुजरी हूँ। तुम्हारे जैसे बेहुदा शख्स की बकवास में पिछले 1 घंटे से बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर इज़्ज़त तुझे रास नहीं है शायद। जो के मुँह में जो आया वो कहती चली गई। तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो और मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जमशेद के हैरलूद निगाहें उस पर डालता हुआ बाहर निकल गया। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरी बालियों में उंगलियाँ चलाने लगी। अब कैसा महसूस कर रही हो? उसने चाहत से पूछा। बहुत अच्छा, मैं अंदरूनी खुशी को दबाता हुआ बोला। मगर तुम्हें जमशेद की इतनी तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? तुम्हें इस हाल में छोड़कर चली जाती। इतना अच्छा रिश्ता तेरे हाथों से निकल जाएगा बेवकूफ़। मैं कर्बनाक आवाज़ में बोला। और उसकी वजह मैं बनूंगा। वो इत्मीनान से बोली। तुमने भी तो मेरी वजह से कितने अच्छे रिश्ते गंवा दिए। गोया हिसाब बराबर कर रही हो। नहीं, असल बात यह है। उसने दोनों हाथों के प्याले में मेरा चेहरा भरकर मेरा रूह अपनी तरफ किया। क्या? मेरे लबों से फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। कल जब मैंने डाइनिंग टेबल पर अपनी शादी का जिक्र किया था तो तुम कोई जवाब दिए बगैर इस तरह क्यों उठ गए थे? तुमसे मेरी शादी वाली बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं आहिस्ता से बोली। तो बस ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ही शादी करूंगी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। मैं बेबसी से बोला। अगर मैं कहूँ मैं आज तक बहुत बड़ी गलत फहमी में रहा, फिर क्या करोगी? वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। यही कि मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। जो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें इस शिद्दत से चाहता हूँ। नमी मेरी आंखों के गोशों से रिसने लगी, लेकिन मुझे पता था। वो मेरी छाती पर सर रखते हुए बोली। बस डरती इस बात से थी कि कहीं तुम्हें ये बहुत देर बाद इस बात की खबर ना हो। कहीं ये ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। कहीं ये ना हो कि शादी के बाद तुम्हें पता चले और हमारे पास फ़कत पछतावे रह जाए। उस वक्त नर्स खंगारती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में ट्रे उठाई हुई थी जिसमें यखनी का प्याला और एक डबल रोटी रखी हुई थी। नर्स की आमद के बावजूद जो मुझसे दूर हटने को तैयार नहीं थी। सिस्टर, बोबले हुए अंडे और दूध का गिलास भी ले आओ। मीठा ना डालना। जी मैडम, कहकर नर्स वापस मुड़ गई। मैंने मुंह बनाया। ये यखनी वाली मुसीबत कम थी कि अब उबले हुए अंडे भी। वो मनी हुई मुस्कुराहट से बोली। मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे? सारी ज़िंदगी खाऊंगा जो। अच्छा, एक बात बताओ। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। कोई बात रह गई है क्या राजू? इससे पहले तूने जितनी भी लड़कियों के साथ रवाबित रखे मुझे परवाह नहीं थी, मगर अभी रक्षी की वजह से मुझे संभलना पड़ा। इस दिन जो तुमने मुझे अज़रा कहा उसकी तलखी अब तक मेरे वजूद में रची हुई है। मैं डर भी गई थी। अपने तय मैंने समझ लिया था कि मैं तुझे खो चुकी हूँ। फिर मैंने एक दाव खेलने का फैसला किया। औरत मर्द की आंखों को खूब जानती है और काफ़ी अरसे से मैं ये महसूस कर रही थी कि जमशेद मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने उस दिन उसकी हौसला अफजाई की और वो एकदम शादी पर तैयार हो गया। मेरा वजदान कह रहा था कि तुम मुझे रोक लोगे, अपनी ज़ोर को किसी दूसरे के दस्तरस में नहीं जाने दोगे। और देख लो मेरा अंदाज़ा कितना सही था। पागल, मैं मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से बोला। उसी वक्त नर्स दोबारा अंदर दाखिल हुई। शुक्रिया, कहकर जो ने उसे ट्रे पकड़ी और मुझे खाना खिलाने लगी। अभी मैं दूध पी रहा था कि अम्मी जान दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर आई। उनके पीछे चची जान, अब्बू जान और चचा जान भी थे। ये क्या भाई, तुम तो पक्के ही लेट गए हो? चचा जान ने मुस्कुराकर पूछा। ये जो की कारस्तानी है। चचा जान मुझे उठने ही नहीं देती। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहा है? चचा जान दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ। यकीनन वो अब तक जोर से खफा थे। बाकी तमाम भी जोर से खिंचे खिंचे लग रहे थे। मैं जवाब में बोला,
डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं बताया। अचानक जो आगे बढ़कर अम्मी जान के गले लग गई। मेरी प्यारी चची मुझसे क्यों खफा है? बेटियों से भी कोई खफा हो सकता है? अम्मी जान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे तेरी पुप्पी आई थी, अभी वापस गई है। हाँ, अब वो आती जाती रहेंगी। चची जान ने कहरलूत नज़रों से जू को घूरा। देखिए चची जान, अम्मी आपकी बहू को कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। जो शरारती लहजे में बोली। मेरी बहू? अम्मी जान के लहजे में हैरानगी थी। तो और क्या, आप भी मुझे शकीला पुप्पी की बहू बनाने पर तुली हैं क्या? जो की माँ बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरी प्यारी शहजादी। उसने जो को बाजू के घेरे में ले लिया। शुक्र है तुम्हें समझ आ गई। वह शरारत से बोली, हाँ ना अम्मी जान, अभी राजू बीमार पड़ा है और घर का कोई फर्द भी उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल नहीं आया। मैं समझ गई कि अगर मैं इस घर से रुखसत होगी तो मेरे मासूम कज़न का ख्याल किसी ने नहीं रखना। उसकी बात पर अम्मी जान और चची झीम कर हंसने लगी, जबकि मेरे हलक से बेसाख्ता कहकहा उबल पड़ा। जो इन दोनों से लिपटी मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद कर ली। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही मैंने स्क्रीन पर निगाह दुराई। या हैरत, रक्षी की कॉल थी। मैं थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से लौटा था। जो मेरी सालगिरह पर मिलने वाले तोहफ़े खोल के देख रही थी, साथ साथ उसका तबसरा भी जारी था। हाय राजू, कितनी खूबसूरत रिस्ट वॉच है, इतना प्यारा कलम। इस डायरी की ओराक तो लगता है गुलाब की पत्तियां हैं, खुशबूदार और मुलायम। यस, मैं कॉल अटेंड करते हुए नॉर्मल लहजे में बोला। कैसे हो? रक्षी के लहजे में गुज़िश्ता रंजिश का नाम और निशान तक न था। मुझे पता चला कि 2 दिन हुए आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ और अभी भी हॉस्पिटल से लौटा हूँ। खफा हो? उसने दिलावेज लहजे में पूछा। उसकी खफा हो सुनते ही मैंने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। नहीं तो खफकी तो गालबन आपकी तरफ से थी। अपने ही सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी। उसके लहजे में नदामत का अंसर नुमाया था। उसकी बात सुनते ही जो भी अपना शुगल तर्क करके हमारी तरफ मुतवज्जा होगी। अगर अभी आराम नहीं करना तो मैं मिलने के लिए आ जाती हूँ। मैं इत्मीनान से बोला, ये तो जोर से पूछना पड़ेगा, अब पता नहीं उसने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक लम्हे के लिए खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली, ताना दे रहे हो? नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। मैं समझी नहीं। मेरी समझ में नहीं आई। वो उलझ गई थी। 2 हफ्ते बाद जो की सालगिरह है और इसी तकरीब में हमारी मंगनी भी होगी। ऐसा जो चाहती है और मैं उसके अलावा कुछ चाह कर भी नहीं सकता कि मेरी जोया जाए। मुझे यकीन था वह एकदम राब्ता मुनक़ता कर देगी, मगर उसकी बजाय मुझे उसकी दुख भरी आवाज़ स्पीकर से बरामद हुई। क्या ये सच है? 100% जदीर, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा। मगर इसका बात का पता मुझे उसी दिन चल गया जब तुम अज़रा को मनाने के लिए मुझे अकेला छोड़कर उसके पीछे भाग गए थे। बल्कि मैं क्या, तुम्हारे तमाम जानने वाले इस बात से वाकिफ़ है कि तुम फ़कत अज़रा की हो। यूँ भी वो मुझसे खूब सूरत भी है और मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल भी रख सकती है। इतने दिन मैं शराब के पीछे दौड़ती रही। खुदा हाफिज़, अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया रक्षी, मैंने सही कहा कि तमाम इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं खुद ना वाकिफ़ था। अल्लाह हाफिज़, यह कहकर मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जो मुझे चिढ़ाते हुए बोली, तुम नावाकिफ़ रहते तो बेहतर था। इतना अच्छा वक्त रिश्ता गवा दिया तुम्हारी इस वाकफियत ने। डॉक्टर तो किस्मत वालियों को मिलते हैं। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी मरम्मत नहीं की। मैं बेड से उतर कर उसकी जानिब बढ़ा। नावाकिफ़ थे तो पिटाई कर देते, अब भी पिटोगे? उसने इस मासूमियत से कहा कि एकदम मेरा जारहाना मूड ख़त्म हो गया और मैं उसके करीब कालीन पर बैठता हुआ बोला, अच्छा एक बात बताऊं, जमशेद का कोई फ़ोन नहीं आया था? ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उठकर उसकी सिमत भरा और वह ज़ुबान निकाल कर मेरा मुंह चिराते हुए छबाक से बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वहाँ से उसने सीधा अम्मी जान की गोद में जाकर घुस जाना है कि ऐसे मौके पर वही उसकी सबसे बड़ी तरफदार हुआ करती थी। इसके साथ ही यह खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।